and we'll be waiting for a couple of more minutes and we'll begin in some time. Share my screen. You can give me a thumbs up in the chat if my audio is clear. Is my screen visible? A +1 in the chat can be given. Okay. So I would just like to tell that if anyone is having any doubt in the topic that I'll be teaching today, they need to tell me then so that we can clear it. And so our motto of this session will be that each and every one of you should know what is a binary tree, what are the tree traversals, and later on we'll be discussing about the BST, which is the binary search tree. So please don't shy away that there are people and we should not ask doubts. Anyone having any kind of doubt related to these topics, you need to come up with that and stop me there and then. And I'll also request the co-host or the host to please give the participants to unmute themselves so that I can get the doubts there and then. Otherwise, um, it becomes a little difficult. So yeah, um, is that clear? I think we can begin. So today we'll be doing what are binary trees. Then we'll be discussing and seeing the codes and the actual implementation for the tree traversals. And then we'll be seeing BST, which is the binary search tree. So first coming to binary trees and trees in general. So trees, you must have learned about some linear data structures like arrays, linked list, queues, stacks. So these are linear data structures. By linear, I mean there is a linear structure of storing the data. For example, in arrays, there is a continuous storing data. You have indexes 0, 1, 2, 3, 4. In linked list, you have a next node to which gives a reference to the next linked node. So it is a linear data structure, and similarly, it happens in other nodes as well. For a stack and queue, also you use array as its implementation. So the implementation of queues and stack is also linear. That is a separate issue, that it is LIFO and FIFO, last in first out or first in last out. So that is a separate issue, but it is a linear data structure. But today we'll be discussing about something, a data structure which is non-linear. Um, so somebody is asking what is the difference between binary search. Okay, so ठीक है, people want me to speak in Hindi as well, so we can do that. Um, can we give? I would like to request Shivam. Can we give them the ability to unmute themselves? It becomes a little difficult to continuously see the chat. Shivam, can we do that? Yes, you can continue. I was saying that can we give them the ability to unmute themselves? Yes, you can. Okay. Okay, now they can unmute themselves. Yes, thank you, sir. Thank you, ma'am.
या फिर कोई और पैटर्न है बट एक लीनियरिटी नहीं है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रीज, इट इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विद अ हायरार्की। हायरार्की से क्या मतलब है कि कोई चीज ऊपर है, फिर कोई नेक्स्ट लेवल पे है, फिर उससे नेक्स्ट लेवल पे है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे ट्रीज में एक रूट नोड होता है जो कि हमारा मेन नोड है, जहाँ से हम शुरू करते हैं। जो ये हमारे पास A B C D ये सब लिखे हुए हैं, इनको हम नोड्स बोलते हैं। एक ट्री के नोड्स होते हैं, और दो नोड्स एक दूसरे से एक एज के थ्रू कनेक्टेड है। जो हमारा स्टार्टिंग नोड है या हमारा पेरेंट मोस्ट नोड है या फर्स्ट नोड है, उसको हम रूट बोलते हैं। Everyone clear till now? Anybody having any doubt? Okay. So root is our parent node, parent most node मतलब सबसे पहला नोड है हमारा। एंड उसके नीचे उसके चिल्ड्रन है। उसका लेफ्ट चाइल्ड है B, उसका राइट चाइल्ड है C। ये हमारे पास बाइनरी ट्रीज में दो चिल्ड्रन होते हैं। अदरवाइज वी कैन हैव many children, as many children as we want. We can have five, we can have a node with five children as well. But that is not a binary tree, that is just a tree. A tree means कि एक रूट है, उसके आगे चिल्ड्रन है, उन चिल्ड्रंस के आगे चिल्ड्रन है। अब उनके दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, जितने मर्जी। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ बाइनरी ट्री, वी आर सेइंग दैट एट मैक्सिमम हमारे पास सिर्फ दो ही बच्चे हो सकते हैं, दो ही चिल्ड्रन हो सकते हैं। एंड जैसे अब यहाँ पे ये एक बाइनरी ट्री का एग्जाम्पल है। सो फॉर एग्जाम्पल A इज आवर रूट, and then we have a left child which is B, we have a right child which is C, and then B becomes the parent of D and E. So D is the left child of B, D left child है B का, E right child है B का। ऐसे ही similarly E H हमारा D का left child हो गया, और आई हमारा इधर लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, जो भी आप कह लो, क्योंकि एक ही चाइल्ड है। तो दैट डिपेंड्स कि हम उसे कोड में कैसे लिख रहे हैं। बट अभी आप ये समझ लो कि एक हमारा होता है पेरेंट, उसके होते हैं चिल्ड्रन। जो हमारा सबसे पहला नोड हमें जो मिलेगा उसे हम रूट बोलते हैं, जहां से हम अपना ट्री ट्रेवर्सल शुरू करते हैं। ये हो गया हमारा रूट नोड। इसको हम पेरेंट बोल सकते हैं किसके लिए, बी और सी के लिए। अब हम एक बार टर्म्स देख लेते हैं। पेरेंट नोड मैंने आपको बता दिया, इट इज द नोड विच हैज चिल्ड्रन टू इट, एंड विद रिस्पेक्ट टू D and E, B is the parent. With respect to B and C, A is the parent. With respect to G and F, C is the parent. So I think that is clear. चाइल्ड नोड हम बोलते हैं बी को, सी को। किसके लिए चाइल्ड नोड, ए के लिए। डी और ई किसके लिए चाइल्ड नोड, बी के लिए। ठीक है। रूट नोड हमने देख लिया, जो टॉप मोस्ट नोड है हमारे पास ट्री का, वो हमारा रूट नोड है। यहाँ से हम अपना ट्री बनाना शुरू करते हैं, यहाँ से हम अपना ट्रेवर्सल शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको ये लेवल्स दिख रहे होंगे। ये लेवल है कि लेवल 0 पे हमारे पास एक नोड है, लेवल 1 पे हमारे पास इसके चिल्ड्रन है। फर्स्ट जो हमारे पास टॉप मोस्ट नोड है उसके चिल्ड्रन लेवल 1 पे हैं। देन लेवल 2 पे जो अभी चिल्ड्रन बने हैं उनके जो चिल्ड्रन है वो लेवल 2 पे हैं। सिमिलरली लेवल 3 पे उनके चिल्ड्रन, लेवल 4 पे उनके चिल्ड्रन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जब हम बात करते हैं बाइनरी ट्रीज की, देन वील मेक श्योर वी हैव मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, 1 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। जैसे जी का कोई भी चिल्ड्रन नहीं है और जे के 2 है एंड ई का सिर्फ एक है, तो दैट इज पॉसिबल, बट मैक्सिमम 2 इन केस ऑफ बाइनरी ट्रीज। बाइनरी से आपको नाम भी समझ आ रहा होगा, बाइनरी मीन्स 2। फिर हम बात करते हैं लीफ नोड या एक्सटर्नल नोड्स किसे बोलते हैं। लीफ नोड होते हैं हमारे जो लास्ट वाले होते हैं, जहाँ पे ट्री हमारा एंड हो रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये लीफ है हमारा। इसका मतलब ये नहीं कि जिसके नीचे कुछ नहीं है वो लीफ हो गया। जैसे मतलब ये वाला हमारा लीफ नोड नहीं है, जी हमारा लीफ नोड ही है। जो हमारा लास्ट लेवल पे होंगे, जो हमारे लास्ट लेवल पे नोड्स होंगी, वो हमारी लीफ नोड होगी। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ट्री है यहाँ पे, just give me a minute. For example, we have a tree here, और यहाँ पे ये है, ऐसे कुछ ट्री बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारा लीफ नोड ये नहीं होगा, लीफ नोड हमारा सिर्फ ये होगा जो हमारा लास्ट लेवल पे है। These will not be our leaf nodes. The last level of the node, the nodes that come in the last level will give us the leaf node.
In fact, I'll just have to cross check, but I think probably G will also be a leaf node, but we'll come back to that. I'll just get you a better description of this. Ma'am, according J- to my Yeah, knowledge, yeah, I think a node which the has node, no children will be considered yes. as a leaf node. So yeah, that is why I was thinking that G will be also a leaf node. It is not written here. So yeah, that is why I was saying that we'll have to come back to it. But yeah, Okay. okay. Because leaf node depicts that you are ending there. Your path is ending there. But we'll come back to that as well. Ancestors हमारे हैं जो हमारे upper parent है, they will be called the ancestors, which can include not only the immediate parent, it can be the above parents as well. For example, for K, H is an ancestor, D is an ancestor, B is an ancestor, and similarly A. And descendants can be the opposite of this. For example, A's descendants are B, D, H, and K. Then we have a level of a node. Level of a node is told. Different levels come by while we are making a binary tree. And then we have the neighbors. So neighbors can be the child and the parent relationship as well. So D's neighbors which are connected to it, D's neighbors are H and B. E's neighbor are B and I. So that is that. A subtree. So this can be called a subtree. This can be, just give. So yeah, this whole can be called a subtree. Um, I'll just mark it. So this whole can be called a subtree. This is a subtree for A, and then this is a subtree. So that is that, a part of a tree which can be called a subtree along with its descendants. Uh, so the edges, आपको ये बताया है, when two nodes are connected to each other, the connection between them is called an edge. So for example, if there are n number of nodes, then we'll have n minus 1 edges. For example, uh, we can have this is at max. Obviously, we can have less than that, but at max, then it is there. So depth of a node and height of a node can be calculated by the highest level that we have, the the deepest point, or the deepest path, or the longest path that you can go uh, to any of the child will give you the height of the tree. So there are different types of trees as well. Abhi we were just talking about the binary trees कि दो children होते हैं. This can be different also. So we have general trees where there's no restriction to the number of nodes that we have. उसमें जितने मर्जी nodes हो सकते हैं, जितने मर्जी children हो सकते हैं एक parent के. So that is my general trees for you. Then we have binary trees where we have only two nodes to a parent at max. This is at max. This is not always mandatory. This is at max. Then we have balanced trees where the height of the left subtree, the right subtree is equal or different by at most one. इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो डिफरेंस ऑफ हाइट है वो मैक्सिमम एक हो सकता है, एक लेवल हम इससे बढ़ सकते हैं, बट इससे ज्यादा नहीं हो सकता. मतलब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो मैक्सिमम है वो h है, मैक्सिमम लेवल हमारा 4 है, और जो हमारा आप ये कह लो कि मिनिमम लेवल है वो हमारा 1 है. ये 0 लेवल हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया. तो हमारा मैक्सिमम लेवल 3 है, और मिनिमम लेवल या जो लीस्ट लेवल हमारे को अवेलेबल है वो हमारे पास 1 है. तो इनका डिफरेंस हो गया 2, which is not applicable for a balanced tree. When we are talking about balanced tree, then the difference between the heights of the left subtree and the right subtree should be at most 1 only. तो इसका क्या मतलब होता है कि आपका जो ट्री बन रहा होता है वो पूरा बन रहा होगा, मतलब वो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री की तरह बनेगा. बस वहां पे डिफरेंस आ सकता है लास्ट टू लेवल्स में. अगर वो लास्ट टू लेवल्स एट मोस्ट एट अ डिफरेंस ऑफ 1 पे है तो इट इज अ बैलेंस ट्री, अदरवाइज इट इज नॉट. बाइनरी सर्च ट्री पे विल डिस्कस Hello. इन डेप्थ आल्सो. या
मैम मैम थोड़ा धीरे बोल सकती हैं क्या? आपको बहुत स्पीड फास्ट बोल रही हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, आई एम सो सॉरी। मैम मेरा ये एक क्वेश्चन है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैम अगर ई जो आपने बैलेंस स्ट्रीम में लिखा हुआ है उसमें हाँ ई में भी एक नोड होता, एक और नोड होता, हाँ उसका जी एक चाइल्ड होता, हाँ जी तो भी क्या ये बैलेंस्ड होता? हाँ जी। तब भी बैलेंस, आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे ये बैलेंस ट्री वाली साइड में एक लगा दे हम? आप यहाँ पे लगाने को बोल रहे हो? ई का एक चाइल्ड बना दो। यहाँ पे? हाँ, हाँ अभी जी भी बैलेंस। हाँ जी, अभी भी बैलेंस्ड है, क्योंकि आपका जो ये लेफ्ट सब ट्री है उसका, उसकी हाइट क्या है? उसकी हाइट है 3, और जो राइट सब ट्री है उसकी हाइट है 2। उनका डिफरेंस क्या है? 1। ठीक है, ये लेफ्ट लेवल सब डिफरेंस ट्री, उनसे ज्यादा लेफ्ट नहीं सब है। ट्री हम इसको बोल रहे हैं, राइट सब ट्री हम इसको बोल रहे हैं। ओके ओके। ठीक है। मैं कुछ रिपीट करूं? एनीबडी हु इज सेइंग थोड़ा सा आप तेज बोल रहे हैं, शुड आई रिपीट माई सेल्फ? यस मैम, वो ट्री वाला बैलेंस ट्री वाला कॉन्सेप्ट वापस से एक बार बता दें। हाँ जी। तो बैलेंस ट्री क्या है? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे लेफ्ट सब ट्री की हाइट और राइट सब ट्री की हाइट में अगर डिफरेंस एट मोस्ट 1 है, या तो वो 0 हो या मैक्सिमम 1 हो, तब तक तो वो बैलेंस ट्री है, अदरवाइज वो नहीं है। अब लेफ्ट सब ट्री क्या है? लेफ्ट सब ट्री हमारा, ये ए है हमारा रूट नोड। इसका, लेट मी जस्ट, मैम डिफरेंस -1 to 1 के बीच में होना चाहिए ना? डिफरेंस होना चाहिए, या तो कोई भी डिफरेंस ना हो, सब बराबर हो, मतलब 0 डिफरेंस, या फिर 1 हो, मतलब एक ही लेवल का डिफरेंस हो। मैम -1 भी तो हो सकता है ना? -1 मतलब आप ये कह रहे हो ये बढ़ गया, ये राइट राइट में ज्यादा हो गया? लेफ्ट सब ट्री जो है वो जैसे बड़ा हो गया और राइट सब ट्री छोटा हो गया, तो उस केस में तो 1 हो जाएगा। हाँ अगर जी, तो सेम, जो अभी बना हुआ है। यस, अभी हम उसको उल्टा कर दें। आप ये कह रहे हो यहाँ पे बना दो, एक यहाँ पे बना दो, ऐसे? मैम उसके नीचे जी के भी नीचे हो सकता है ना, वैसे हाँ, तो फिर। जहाँ पे भी ये राइट में बना रहे हो, ये एफ में तो, यस एफ में बना रहे तो राइट में बन रहा है। नहीं, यस वो चीज नहीं, वो चीज पॉसिबल है, देन इट्स नॉट अ बैलेंस ट्री, नो। मैम वैसे हो सकता है, बिकॉज हम जो प्रोसेस करते हैं इसको, तो वो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट कहीं से भी कर सकते हैं, बट उनका जो डिफरेंस आना चाहिए वो -1 to 1 के बीच में आना चाहिए। इट मीन्स कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 भी हो सकता है। -1 इन द सेंस कि जैसे -1 इन द सेंस कि आप राइट को मतलब लेफ्ट समझ रहे हो आप? यस यहाँ से ट्रैवल कर रहे हो? यस। आई एम नॉट रियली श्योर, आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दिस, आई हैव टू गो बैक एंड चेक। मैं आपको यहाँ पे कुछ गलत बता दूं और कुछ हो तो दैट इज नॉट। नो मैम, जो मैंने पढ़ा हुआ है मतलब उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हो हूँ। सकता है, आई एम नॉट रियली श्योर, आई हैव टू गो बैक एंड चेक, ओके बिकॉज आई हैव नेवर सीन अ बैलेंस ट्री लाइक दिस, जो राइट साइड बन रहा हो। सो एंड दैट इज नॉट बाय मैम एवरी, डेफिनेशन गिवन। ये जो हम हमें कंडीशन देखनी होती है वो एवरी नोड पे देखनी होती है, राइट? या एवरी नोड पे, बिल्कुल। यस। अगर मतलब वो तो एक पे भी वो फॉल्स हो गई तो हो ही गया ना, सो वो दैट इज, अनबैलेंस हो जाएगी। हाँ जी। ओके, थैंक यू। But I cannot comment on the right part. This is something that I will also check on my part, and you guys can ओके also check. ओके। But yeah, I've also always seen a balance tree making from the left only. And yeah, so for other people, I think I can repeat myself. So the left subtree and the height of the left subtree and the height of the right subtree should have a maximum difference of 1, या तो वो 0 हो या 1 हो, तो वो बैलेंस्ड ट्री है, अदरवाइज इट इज नॉट। यहाँ पे आप एक नॉन बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड ट्री का एग्जांपल देख रहे हो। यहाँ पे जो हमारी लेफ्ट सब ट्री की हाइट है, मतलब वो जो हमारा लेवल है वो 3 पे है, और इसका लेवल, या फिर आप इसको बोल लो इसकी हाइट 3 है। हाइट हम कैसे एजेस से बना सकते हैं कि 1 एज, फर्स्ट एज, सेकेंड एज एंड थर्ड एज, और इसकी सिर्फ एक एज है which has a maximum difference of 2, so this is not a balanced tree and hence it is called unbalanced tree. इसमें किसी को डाउट है तो? मैम यहाँ जो बैलेंस है, बैलेंस ट्री है। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो इसमें एक और नोड जो मैं ऐड करूंगा तो वो बैलेंस ही रहेगा। ई में। ई हाँ में, हाँ जी हाँ जी। मतलब
हाँ, आप राइट साइड में और एग्जांपल बना दीजिए ना बैलेंस हाँ प्रूव हाँ, करके। एक और बैलेंस और अनबैलेंस। अनबैलेंस का तो समझ में आ गया कि ये बैलेंस का एक और। ओके, तो मतलब आप इसको ना लो, यहाँ ये फॉर एग्जांपल मान लो एच नहीं है, एच नहीं, हमारे ई में एक तो और ऐड हो गया, तब वो बैलेंस होगा या अनबैलेंस? वो बैलेंस्ड होगा। यहाँ पे अगर हम एच यहाँ लगा देते हैं इसकी जगह पे, नहीं, दोनों जगह रहेगा, या एच या तब एफ? भी तब भी तब तो है ही है, तब तो है ही है, अच्छा। तब तो है ही है। क्योंकि यहाँ से फिर आप इस तब भी वो बैलेंस्ड रहेगा ना, क्योंकि आप फिर आपके ये वाले पूरे इसकी हाइट क्या है, 3 हो जाएगी, इसकी हाइट क्या है, 2 है। अच्छा, मतलब यहाँ से एक निकल रहा तो ये एक ही मान रहा है, हमको लगा कि दो है। नहीं, ठीक हाँ जी, एक सेकेंड। है। सो बाइनरी सर्च ट्री पे वील डू इन डेप्थ ऑल्सो, बट मैं एक आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। बाइनरी सर्च ट्रीज वो होते हैं जिनके लेफ्ट वाले, मतलब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ बाइनरी सर्च ट्री। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 10, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 6, दिस इज 15, दिस इज 11, दिस इज 17। तो आपने एक पैटर्न फाइंड करा होगा कि जो हमारा पेरेंट नोड है वो अपने लेफ्ट से बड़ा है और राइट से छोटा है। तो इसका क्या मतलब है कि एक नोड के या एक नोड के, अब वो कोई भी हो, रूट नोड हो या बाकी हो, ये सबके लिए ट्रू है कि उसका लेफ्ट वाला उससे छोटा होगा और उसका राइट वाला चाइल्ड उससे बड़ा होगा। एंड दिस विल बी ट्रू फॉर ईच एंड एवरी नोड। ये 7 के लिए भी ट्रू है, 7 का लेफ्ट चाइल्ड उससे छोटा है, 7 का राइट चाइल्ड उससे बड़ा है। 15 का लेफ्ट चाइल्ड उससे छोटा है और 15 का राइट चाइल्ड उससे बड़ा है। तो दिस इज अ बाइनरी सर्च ट्री, दिस इज कॉल्ड बीएसटी। अब इसके फायदे क्या हैं, क्या इसका एडवांटेज है, विल बी डिस्कसिंग व्हेन विल बी डूइंग बीएसटी, एंड व्हाई आर वी मेकिंग समथिंग लाइक दिस, जबकि हमारे पास बाइनरी ट्रीज हैं। तो हम उसके बारे में तब डिस्कस कर लेंगे, अभी हम बाइनरी ट्रीज पे स्टिक करते हैं। आज की क्लास में हम ये भी देख के जाएंगे कि बीएसटी और उसके फायदे क्या हैं। अब एक बार मैं बता देती हूँ कि इसकी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन कोड के अंदर कैसे है। तो जब हम एक बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं तो हमारे पास रूट नोड का या हर नोड पे एक डेटा प्रेजेंट है। जैसे मान लो ये 10 है, तो इसका जो की है या इसका डेटा है ये 10 है, मतलब जो इस पे वैल्यू है वो 10 है। और हमारे पास इसके लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड के रेफरेंसेस पड़े हैं या एड्रेसेस पड़े हैं कि आप उस पे कैसे जाओगे, उसका अब आपके पास एक तरह से रास्ता पड़ा है। आपके पास वैल्यू नहीं पड़ी, आप वैल्यू निकाल सकते हो, बट आपके पास उसकी रेफरेंस पड़ा है, रेफरेंस ऑफ द राइट चाइल्ड एंड रेफरेंस ऑफ टू द लेफ्ट चाइल्ड। आप उसको पॉइंटर भी बोल सकते हो, आप उसको रेफरेंस भी बोल सकते हो, आप उसको एड्रेस भी बोल सकते हो। सो दैट इज दैट। एंड ये बाइनरी ट्री का एक नॉर्मल एग्जांपल है। ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। कंप्लीट से मेरा मतलब है कि फुल्ली दोनों मैक्सिमम इसमें दोनों चाइल्ड दिए हुए हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक चाइल्ड नहीं है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, एक भी हो सकता था या 0 चिल्ड्रन भी हो सकते थे। ये है कि आपको एक नोड कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। तो आप एक की बनाओगे, उसमें आइटम में आप वो डेटा डाल दो या वैल्यू डाल दो, एलिमेंट की जो भी डालनी है। और ये लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड को अभी हमने नल रेफरेंस दिए, आप कुछ दे भी सकते हो या आपको क्वेश्चन में मिला होगा। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि कैसे एक नोड कंस्ट्रक्ट करी जाती है और कैसे आपके पास आगे चिल्ड्रंस के रेफरेंस पड़े, आप कैसे ट्रैवल करोगे। तो एक रूट का या एक नोड का आपके पास डेटा पड़ा है या वैल्यू पड़ी है, और उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड पे जाने का आपके पास रास्ता पड़ा है। आप उस रास्ते को यूज करके आगे जाओगे। ठीक है, तो जैसे आपके पास 1 के पास 2 के पास 1 के पास 2 तक जाने का रास्ता है और 3 तक जाने का रास्ता है और खुद का वैल्यू पड़ी है। ऐसे ही 2 के पास 2 का अपने वैल्यू है और 4 तक जाने का रास्ता है, 5 के पास जाने का रास्ता है। तो अगर हमारे पास 1 की वैल्यू और रास्ते हैं उसके, तो ऐसे ही हम पूरे ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि 1 से हम 2 पे जाएंगे, 2 से हम 4 पे जाएंगे। तो इसमें किसी को डाउट है? आगे फिर हम ट्रेवर्सल्स और कोड देखते हैं इनका। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस, दे कैन प्लीज आस्क।
मैम 2 के पास 1 के जाने का रास्ता नहीं है? नहीं, 2 के पास 1 के जाने का रास्ता नहीं है, ये हायरार्किकल है। आपके पास आपके सिर्फ चिल्ड्रन तक जाने का रास्ता है। मैम every node has 2 pointers, right? One यस the left and second one is right. So यस। we call that binary tree is constructing by using doubly linked list. एक्चुअली नॉट। डबली लिंक लिस्ट से तो आप वापस भी आते हो ना। डबली लिंक लिस्ट क्या होता है कि एक ये है, आप जा सकते हो और फिर आप आ भी सकते हो, ये होता है ना डबली लिंक Yes, लिस्ट तो। yes, हाँ जी, yes. ये नहीं नहीं नहीं, आप इसको उस वे में मत लो। ये एक हमारे पास रूट नोड है जिसके पास जाने के, हमारे पास इसके पास उसके चिल्ड्रन के पास जाने का रास्ता है, चिल्ड्रन के पास अपने चिल्ड्रन पे जाने का रास्ता है। ठीक है, तो हम वापस वाली चीज तो कहीं नहीं कर रहे ना अभी, वो वाली चीज तो नहीं आ रही इसमें। आप इसको लीनियर से कंपेयर ही मत करो, ये एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, कुछ लीनियरिटी में चलता ही नहीं है। यहाँ पे हायरार्की है कि पेरेंट हो गया, फिर इसका नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट हायरार्की इसके चिल्ड्रन, एंड इसके फिर ग्रैंड चिल्ड्रन कह लो आप, तो एक हायरार्की है यहाँ पे। वो आप लिंक लिस्ट से इसे आप कनेक्ट ना करो अभी, अदरवाइज इट विल बी कंफ्यूजिंग फॉर यू। आप Excuse me, इसको, ma'am. हाँ जी, Ma'am, can a binary tree must have 2 children nodes, नो or it can have maximum 2 children nodes? it can have maximum 2 children node, it can have 0 nodes, it can have 1 node, or it can have maximum 2 nodes. So if a root node have only one child node, then it will be considered as a binary tree or not? You're saying this is a root node and then we have only one child, Yes. right? Yeah, Yes. it is a binary, you can call it a binary tree. I mean, why not? It is not mandatory that you should have 2 children. And just a root node? It can also be considered. Okay, fine. I mean, there is no condition as such that at maximum you should have 2 nodes. You can have, and if you have, then that is that. It's a So the thing is, it can have maximum 2 children node. It can Yes. either can have 1 or 0, but max is 2. Yeah, absolutely. This example is a balanced tree, right? 2 node. Yeah, this is absolutely No, balanced. which This you have तो made कोई now. this, Yes. yeah, the root and one child, It's this one. a one balanced. हाँ जी, ये भी बैलेंस्ड है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। इसके लेफ्ट में 1 है, इसके राइट में 0 है, डिफरेंस 1 है, तो इट इज बैलेंस्ड। या सो if this is clear then we can move forward. Anybody else? Okay sir, I think we can मैम move. हाँ जी, हम जब भी नोड को ऐड करते हैं तो हमेशा लेफ्ट साइड में ऐड करते हैं ना पहले। ठीक, आप कर सकते हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आप उधर भी ऐड कर सकते हो, वो बस एक वो बन जाता है। जस्ट कंडीशन को मैम सेटिस्फाई होना चाहिए कि रूट नोड से वो जो नोड ऐड करना है वो बड़ा है या छोटा है। नहीं, वो सिर्फ वो बीएसटी के केस में है, जो तभी मैं वो पहले बता नहीं रही थी आपको कि क्या है ये जो हमने अभी 10 7 15 वाला देखा है ना एग्जांपल, यस, दिस इज इन द केस ऑफ बीएसटी व्हिच इज कॉल्ड बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, बाइनरी ट्री में कुछ नहीं है, आप इसको ना भूल जाओ अभी के लिए। दैट इज व्हाई आई वाज नॉट टेलिंग दीज थिंग्स, जस्ट फॉरगेट दिस बीएसटी एंड ऑल, वी विल डू इट आफ्टर यू आर क्लियर विद बाइनरी ट्रीज। दिस इज समथिंग डिफरेंट। अभी बाइनरी ट्री की बात हो रही है, उसमें नंबर कैसे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ये तो बस एक आप कह रहे हो कोइंसिडेंस है कि इन्होंने ये पैटर्न में लिखा हुआ है। यहाँ पे भी देखो 1 के बाद 2 है, अभी कोई 2 छोटा थोड़ी है 1 से, बट फिर भी लेफ्ट साइड ओके। प्रेजेंट है तो ना। बाइनरी ट्री मतलब 2 टाइप्स के हो गए, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। सो दोनों कोई सा भी किसी भी ग्राफ को हम बाइनरी ट्री बोल सकते हैं यदि उसके पास मैक्सिमम 1 और 2 नोड हो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बाइनरी सीधा फंडा है। बैलेंस्ड को भी आप भूल सकते हो, बैलेंस भी आपसे कोई पूछने नहीं वाला क्या होता है कैसे होता है, ये तो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बताया था। मेन चीज हमारी है बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री हम किसको बोलते हैं? जिसमें एट मैक्स 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, एट मैक्स। अब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। सीधा है, बाइनरी ट्री में 0 1 या 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। उसमें कोई फंडा ये नहीं है कि लेफ्ट बड़ा छोटा होना चाहिए, राइट बड़ा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है बाइनरी ट्री में। उसमें आप कैसे मर्जी एलिमेंट्स डाल सकते हो, उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी
रैंडम हो सकता है। एक रूट नोड के पास या एक नोड के पास, एक सिंपल नोड के पास उसका खुद का डेटा या खुद की वैल्यू पड़ी है और उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड का पॉइंटर या रेफरेंस पड़ा है, उसके जाने तक का रास्ता, सिंपल भाषा में। ठीक है, इसके अलावा आप मेरे को बताओ कोई आपको दिक्कत आ रही है? Hello, somebody was asking, am I able to make my point clear? Yes, ma'am. Okay, can we move forward? Anything else? No, ma'am. Don't confuse yourself with BST. BST हम एक बार देखते हैं, एक बार आपको बाइनरी ट्री क्लियर हो गया, BST तो कुछ आपको लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो एक बार हम सिंपल बाइनरी ट्री देखते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी ट्रेवर्सल्स क्या है, ट्रेवर्सल्स में किसको बोल रही हूँ और क्या है वो मैं एक बार बताती हूँ। सो जब हम एक ट्री की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे एक ट्री बना भी देती हूँ। ठीक है, तो ये एक बाइनरी ट्री है जिसके अंदर ये हमारा रूट नोड है, ये जो 10 है, दिस इज आवर रूट नोड, दिस इज आवर रूट नोड, ये लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड एंड सिमिलरली दिस। ठीक है, अब हम जब बात कर रहे हैं ट्रेवर्सल्स की, देन वी मीन कि हमें ट्रैवल करना है। जैसे आपने एरे पे देखा होगा, आप लूप लगा के ट्रैवल करते हो या इटरेट करते हो, आपने टर्म सुनी होंगी कि लेट्स इटरेट ओवर एरे, ओवर एन एरे, लेट्स ट्रैवल ओवर एन एरे। तो वो हम एक लूप लगा के करते हैं, या तो हम फॉर लूप लगा देते हैं कि i इज इक्वल टू 0, i लेस देन द लेंथ ऑफ द एरे एंड i प्लस प्लस। आप ऐसे ही एरे के ऊपर ट्रैवल करते हो, आपको पता है कि i प्लस प्लस करेंगे तो हम अगले अगले उसके ऊपर जाएंगे, अगले अगले इंडेक्सेस पे, नेक्स्ट एलिमेंट्स पे जाएंगे। ऐसे ही अब हमें ट्री पे भी ट्रैवल करना है। आप एरे पे क्यों ट्रैवल करते थे? आपको मान लो सम निकालना है, आपको हर पे जाना पड़ेगा ना उसको डालने के लिए, तो आपको ट्रैवल इंपॉर्टेंट है। हर हर क्वेश्चन आप उठा लो एरे का, आपको ट्रैवल करना पड़ता है एरे पे, उस पे कुछ भी आपको ऑपरेशन लगाना है, आपको सॉर्ट करना है, आपको और कुछ करना है, आपको ट्रैवल करना पड़ता है। ऐसे ही हमें ट्री पे भी ट्रैवल करना होगा। हमें उसका मान लो कोई हमें मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है, मिनिमम एलिमेंट निकालना है, या कोई हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है, डिलीट करनी है, उस सब के लिए हमें ट्री पे ट्रैवल करना पड़ेगा। तो आपको ये समझ आ गया कि हमें ट्री पे ट्रैवल करना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब वहां पे तो बड़ा इजी था, i इज इक्वल टू 0 करो, i प्लस प्लस करके आप उसको वो करते रहो, ट्रैवल करते रहो। बट अब हम ट्री पे ट्रैवल कैसे करेंगे? तो ट्री पे ट्रैवल करने के लिए हमारे पास दो एल्गोरिदम्स हैं, दो मेजर एल्गोरिदम्स हैं। फर्स्ट इज द डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च मतलब कि डेप्थ में जाना, और दूसरा हमारे पास है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जो कि ब्रेथ का मतलब क्या होता है? चौड़ाई में जाना। मतलब डेप्थ का मतलब होता है लंबाई में नीचे तक जाना, और ब्रेथ का मतलब है, जैसे आपने मान लो एक रेक्टेंगल बनाया है, तो जो इसकी वो है लंबाई है वो हमारा डेप्थ हो गया, जो इसकी चौड़ाई है वो हमारा सॉरी जो इसकी लंबाई है वो हमारा डेप्थ है, और जो इसकी चौड़ाई है वो हमारा ब्रेथ है। ऐसे ही हमारा ट्री के अंदर भी है। अगर अगर मैं आपको बोलूं, एक सेकंड में इसको हटा देती हूँ जस्ट टू रिमूव दी, या so when we are talking about depth first search, we mean that we are going deep into the tree. We are going deep into the tree. When we are talking about breadth first search, we are saying that first we will travel to this, then breadth wise हम इस पे, फिर next level पे, फिर next level पे। ब्रेथ डेप्थ में हम जाएंगे ऐसे 10 20 30। अगर मान लो हम ब्रेथ की बात करें तब हम ट्रैवल करेंगे 10 20 50 30 40 60 70 ऐसे। ठीक है, अभी ये मैं बिल्कुल आपको मोटा मोटा बता रही हूँ, हम प्रॉपर देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। जस्ट टू एक्सप्लेन यू द टर्म्स मैं ये बता रही हूँ, इसके बाद इसके अंदर और भी आगे कैटेगरीज हैं, हम उसकी बात करेंगे और उनका कोड देखेंगे। बट एक बार आप
ऊपर ऊपर से समझ लो कि ये क्या है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करें हम डेप्थ की। तो डेप्थ से आपको मतलब समझ आ रहा है कि ट्री के डीप उसके अंदर जाना। अब हमारे पास डेप्थ फर्स्ट सर्च में भी 3 आगे एल्गोरिदम्स हैं या 3 तरीके हैं कि हम कैसे डेप्थ फर्स्ट सर्च को अप्लाई कर सकते हैं। डेप्थ मतलब डीप में जाना। अब उसके अंदर हमारे पास 3 चीजें हैं, एक है हमारे पास प्री ऑर्डर, एक है हमारे पास इन ऑर्डर और एक है पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का क्या मतलब है, आपको मैंने बताया था ये हमारा रूट है, ये हमारा रूट है, ये हमारा लेफ्ट चाइल्ड है, ये हमारा राइट चाइल्ड है, ठीक है। ये हमारा रूट नोड है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। जब हम प्री ऑर्डर की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमारा जो रूट नोड है वो पहले दे दो, रूट नोड की वैल्यू पहले दे दो, फिर हमारा दो लेफ्ट फिर दो राइट। प्री का क्या मतलब है, प्री किसको बोल रहे हैं, प्री का मतलब है पहले, प्री का मतलब आपको पता है पहले, यस मैम। किसको पहले, रूट को पहले, ठीक है। तो जब हम प्री ऑर्डर की बात करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे रूट, लेफ्ट और राइट, जब हम प्री की बात कर रहे हैं। अब अगर मुझे इस ट्री के लिए प्री ऑर्डर लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी प्री ऑर्डर क्या है, पहले 10, रूट है हमारे पास 10, 10, then 20, हाँ, देन 20 बिल्कुल, then 30, then 30, देन 30, then then 80, sorry, then 40, हम्म then then 8, 80, हम्म then then 50, 50, हम्म then 60, 60, 90, 90, then 70. ओके। तो अब मैं काफी बच्चों को पता है, लेकिन हो सकता है कुछ को नहीं भी पता हो, तो मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर देती हूँ ये हमने ऐसा क्यों लिखा है। एक सेकेंड। तो हम क्या बोल रहे हैं कि पहले हमें रूट दे दो, फिर लेफ्ट दो, फिर राइट दो। रूट हमारा पहले 10 है, हमने दे दिया। अब हमने इसका लेफ्ट राइट नहीं हम देंगे, अब हम देखेंगे यही चीज हमने सब ट्री के लिए भी करनी है, ठीक है। अगर मान लो इस तरीके से करना होता तो मैं लिख देती 10 20 50। कोई मुझे पूछे जी आपने तो बोला है रूट लेफ्ट राइट, आपने 10 20 50 क्यों नहीं लिखा, ये रूट होता, ये लेफ्ट होता, ये राइट होता। बट ये जो रूट लेफ्ट राइट है ना, ये हमने सारे नोड्स पे अप्लाई करनी है चीज, नॉट ओनली ऑन द पेरेंट नोड विच इज द रूट। ये हमने सिर्फ पेरेंट नोड पे नहीं, ये सारे नोड्स पे करनी है। इसलिए हमने ये रूट लेफ्ट राइट सब पे लगाना है। अब हमने ये सब पे कैसे लगाया, हमने पहले लिखा, पहले इसके लिए रूट क्या है, रूट इसके लिए 10 है, ठीक है भाई। अब हम इसके लेफ्ट पे जाते हैं, अब हम लेफ्ट पे गए, हमने देखा भाई ये चीज हमने इस पे भी तो अप्लाई करनी है, इस नोड पे। इसका इसका रूट क्या है, 20 का रूट क्या है, 20 का रूट खुद ही 20 है, हमने 20 लिख दिया। भाई 20 का कुछ लेफ्ट है, हाँ लेफ्ट है। 30, भाई 30, 30 पे भी तो हमने यही चीज अप्लाई करनी है, कर दो। 30 पे भी अप्लाई कर दी। अब 30 का लेफ्ट क्या है, 30 का लेफ्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है छोड़ दो। 30 का राइट है कुछ नहीं, 30 का राइट भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब अभी हमारा 20 का लेफ्ट तो हो गया था, 20 का राइट बचा है, तो हमने 20 का राइट लिख दिया 40। अब 40 का खुद का क्या है, 40 खुद हमने लिखना है, तो 40 का खुद का लेफ्ट है तो उसने लेफ्ट लिख दिया अपना। अब हमारे 10 का सारा लेफ्ट साइड हो गया, अब 10 की राइट पे जाएंगे हम। राइट पे गए, हमने 50 लिखा, 50 लिखा, अब देखा उसका लेफ्ट है 60 लिख दिया। 50 का राइट देखा, अब हम 70 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम 60 पे आ चुके हैं, तो हमें 60 के लेफ्ट राइट देखने हैं, क्योंकि हमने ये रूट लेफ्ट राइट सब पे लगाना है, इसलिए हमने 60 का लेफ्ट राइट देखना है। तो हमने 60 का लेफ्ट राइट देखा, लेफ्ट में कुछ नहीं था, राइट में 90 था, इसलिए हमने 90 लिख दिया। अब 50 का लेफ्ट हो गया था, 50 का राइट रह गया, 50 के 70 पे, 50 के राइट पे गए जो कि 70 था। अभी किसी को डाउट है, मैं दोबारा बता देती हूँ, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। आई हैव नो प्रॉब्लम अगेन, सो प्लीज लेट मी नो अगर किसी को भी इसमें डाउट है, even if a single person has a doubt. Anybody? I can then I'll ask any one of you to give me the answer to the another example that I'll write. I think it is clear. नहीं है किसी को doubt? Everyone is okay with it? Okay. No, ma'am. Yes, ma'am. Nobody have doubts. You can move ahead. Okay.
सो दिस वाज द प्री ऑर्डर। अब अगर हम बात करें इन ऑर्डर की, ठीक है, इसी एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। हम बात करें अगर इन ऑर्डर की, अब इन बोल रहे हैं, इन किसके लिए बोल रहे हैं? रूट के लिए। जैसे पहले हम प्री रूट के लिए बोल रहे थे, अब हम फिर से इन रूट के लिए बोल रहे हैं। भाई रूट को इन कर दो, रूट को अंदर डाल दो। तो क्या है, पहले लेफ्ट दे दो, फिर रूट दे दो, फिर राइट दे दो। ठीक है, पहले प्री में क्या था, भाई रूट बाहर दे दो, रूट पहले दे दो, फिर लेफ्ट राइट कर लो। इन में क्या है, भाई रूट को अंदर डाल दो, बीच में डाल दो दोनों के, लेफ्ट राइट के। तो हमने अंदर डाल दिया। अब इसका मेरे को बताओ क्या होगा। मैम 30, ओके 30 देन 20, देन ओके 40, देन 40, हम्म देन 80, नो मैम, देन 10। यहाँ पे गलत हो रहा है आई थिंक। आपको ये लग रहा है 40 कैसे आप दे रहे हो मेरे को? यस, गलत है। 40 के 80 लेफ्ट आएगा ना पे नहीं मैम? जाना हमें? 80 80 आएगा। आएगा, 80 देन 40। गुड। आप 20 पे गए, अब आपने देखा भाई, अब इसके बाद इसका राइट चाइल्ड पे आते हैं, बट राइट चाइल्ड का तो खुद ही लेफ्ट है अभी, तो हम वो यस, पहले लिखेंगे, फिर हम उसका रूट लिखेंगे जो कि 40 था, और फिर देन 10, देन 10 जो कि हमारा खुद का मेन रूट है, देन 60, देन उसके बाद 60, क्योंकि 60 का कोई लेफ्ट नहीं है इसलिए हम खुद 60 को लिख देंगे, बिल्कुल। देन 90, 90, देन 50, 70। एक सेकेंड मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर लूं, या उसके बाद हम रूट लिखेंगे जो कि 50, 50, और देन देन 70। 70। तो अब मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर देती हूँ अगर बाय चांस किसी को नहीं आया हो। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई पहले लेफ्ट दो, फिर रूट दो, फिर राइट दो। तो लेफ्ट क्या है, 10 है, भाई इसका तो लेफ्ट प्रेजेंट है, हमें वो देना पड़ेगा पहले। 20, भाई इसका भी लेफ्ट प्रेजेंट है, हमें वो देना पड़ेगा। 30, तो हमने 30 लिख दिया। अब हमें क्या देना है, इसका लेफ्ट तो है नहीं, ठीक है भाई खत्म हो गया इसका। अब इसका रूट दो, इसका रूट क्या है, 20, हमने 20 लिख दिया। अब हमें फिर से राइट दे दो, अब राइट पे चलो, राइट पे गए 40, भाई इसका तो प्रेजेंट है लेफ्ट, हमें लेफ्ट पे जाना पड़ेगा। हम लेफ्ट पे गए, हमने 80 लिख दिया। अब इसके रूट पे जाना है, लेफ्ट के बाद क्या आता है, रूट। रूट पे गए विच इज 40। अब 40 का कोई राइट नहीं प्रेजेंट, तो वो खत्म हो गया। हम वापस आए, हमारा हमने 20 सब कुछ कर दिया था। अब 10 की बारी थी, 10 ने अपने लेफ्ट का सारा लिख दिया। अब 10 की खुद की बारी है, हमने 10 लिखा। अब हम 10 के राइट में गए 50 पे, भाई 50 का तो लेफ्ट प्रेजेंट है, हमें लेफ्ट पे जाना पड़ेगा। हम 50 से 60 पे गए, 60 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो 60 हमने खुद लिखा। हम राइट पे नहीं गए, क्योंकि लेफ्ट के बाद रूट आता है, तो 60 हमने खुद लिखा। फिर हम राइट पे गए, हमने 90 लिखा। जब इसका 50 का लेफ्ट साइड पूरी हो गई, तब हमने 50 खुद लिख दिया, क्योंकि हमने रूट लिखना था, लेफ्ट के बाद आता है रूट। हमने 50 लिखा, एंड 50 के बाद हमने 70 लिखा, क्योंकि रूट के बाद आता है राइट, तो हमने राइट लिख दिया विच इज 70। So anyone having any doubt here, I will repeat it. Please let me know. आप प्लीज शर्माओ ना, सबने चले जाना है। अगर आपको डाउट रह गया तो कोई फायदा नहीं होगा क्लास लगाने का। आप आए भी हो, आपका डाउट रह भी जाए, तो देयर इज नो पॉइंट। Got it? So please ask if you have any doubt in this. अगर एक कुछ भी, हाँ जी, कैन यू प्लीज रिपीट? ये इन ऑर्डर वाला वापस से एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ जी ठीक है। तो इन ऑर्डर हम किसको बोल रहे थे, जैसे हम प्री ऑर्डर में कहते हैं कि भाई हमें रूट पहले दे दो। प्री किसके लिए यूज कर रहे हैं, रूट के लिए, कि रूट लेफ्ट राइट ये पैटर्न होना चाहिए प्री ऑर्डर में। इन ऑर्डर में क्या होना चाहिए, इन ऑर्डर में हमारा रूट इन होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। तो इन ऑर्डर में पैटर्न क्या है, लेफ्ट रूट राइट। लेफ्ट ऑफ द रूट, मतलब लेफ्ट चाइल्ड दे दो पहले, फिर रूट दे दो, फिर राइट चाइल्ड दे दो। ठीक है, हम पहले 10 पे गए, हम फिर 20 पे गए, क्योंकि हमें लेफ्ट पे जाना था, हमें रूट तो देना नहीं। फिर हमने देखा कि भाई ये भी किसी के लिए रूट है, लेकिन इसका लेफ्ट प्रेजेंट है, तो हमें पहले वो देना पड़ेगा, तो हमने 30 दिया। यहाँ तक समझ आया आपको? हु इज आस्किंग, कैन यू जस्ट एक्नॉलेज कि यहाँ तक समझ आया है, अदरवाइज मैं इतना रिपीट करूँ? यस मैम, इट्स क्लियर। ओके ओके प्लीज रिपीट ओके कीजिए एक बार।
अच्छा अच्छा ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि रूट लेफ्ट रूट राइट, ये आपको पता लगा कि ये क्या मतलब है इन, कि पहले लेफ्ट दो फिर रूट दो फिर राइट दो, इतना समझ आया? somebody जो अभी जिन्होंने बोला कि एक बार रिपीट करो। ठीक है। तो हमने कहा कि पहले हमें लेफ्ट देना है, रूट देना है, फिर राइट देना है। ठीक है। हमने 10 से शुरू करा, हमें 10 से शुरू करना होता है, टॉप मोस्ट नोड से शुरू करना होता है। हमने शुरू करा, हमने देखा भाई इसका लेफ्ट प्रेजेंट है, हमें लेफ्ट देना पड़ेगा। फिर हमने देखा भाई इसका खुद भी लेफ्ट प्रेजेंट है, पहले हमें वो देना पड़ेगा क्योंकि ये उसके लिए रूट है। ठीक है। हमने देखा 30, भाई इसका तो नहीं कहीं लेफ्ट प्रेजेंट, हमने ये चेक करा, नहीं इसका प्रेजेंट नहीं है, इसका नल है, इसका कोई भी लेफ्ट नहीं है, तो यही रूट है, मतलब ये लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, इसको दे दो। हमने ये दे दिया 30। अब हम क्या कह रहे हैं कि ठीक है आपने लेफ्ट तो दे दिया, अब आपको फिर से रूट देना है। तो आपने 30 के लिए रूट क्या है, 30 किसका लेफ्ट है, 30 20 का लेफ्ट है ना, तो 30 के लिए रूट 20 बन गया, तो हमने 20 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, आइडियली तो हमें 40 देना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट रूट और राइट लिखा है, बट 40 का भी लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट है, तो हमें पहले वो देना पड़ेगा क्योंकि हमारा इन ऑर्डर क्या कहते हैं कि आपको पहले लेफ्ट देना है, पहले आपको लेफ्ट देना है, चाहे आपको उसमें डेप्थ तक जाना पड़े, चाहे उसमें आपको नीचे तक जाना पड़े। तो आपने 40 की जगह आप उसके लेफ्ट पे गए क्योंकि वो प्रेजेंट था, इसलिए आपने 80 लिखा। फिर 80 के लिए रूट क्या है, 80 के लिए रूट 40 खुद है, तो हमने 40 लिखा। 40 लिखा, अगर मान लो यहाँ पे बाय चांस इसका राइट होता, अगर इसका राइट होता, 40 का कोई राइट चाइल्ड होता तो हम 40 के बाद वो लिखते, बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो जो 10 का लेफ्ट चाइल्ड था, पूरा लेफ्ट सब ट्री, वो हमारा हो चुका है। अब हमें राइट पे जाना होगा, राइट पे जाने से पहले हमें रूट खुद देना पड़ता है, लेफ्ट रूट राइट, तो हमें रूट खुद देना है। तो अब हमने यहाँ पे 10 लिखा, ये अगर कुछ गड़बड़ हो रही हो तो ये 10 है। ठीक है, ये 10 लिखा है यहाँ पे हमने। अब हम गए इसके राइट में, हमने देखा 50 राइट है, ठीक है हमें 50 देना चाहिए था इस पैटर्न के हिसाब से, तो लेफ्ट रूट और राइट के हिसाब से, बट 50 का खुद लेफ्ट प्रेजेंट है, तो हमने वो देखा। ठीक है, 60, हमने 60 लिख दिया। अब हमने 60 क्यों लिखा, क्योंकि 60 का कोई लेफ्ट प्रेजेंट नहीं है, अगर बाई चांस 60 का लेफ्ट प्रेजेंट होता तो हम पहले वो लिखते। ठीक है, 60 का कोई लेफ्ट नहीं था, इसलिए हमने कहा ठीक है यहाँ रुक जाओ, 60 का कोई लेफ्ट नहीं, यही खुद लेफ्ट है, हमने 60 लिख दिया। नहीं, ये खुद लेफ्ट नहीं है, इसके लिए 60 के लिए लेफ्ट है नहीं, तो हमें सिर्फ रूट देना है। 60 के लिए लेफ्ट है नहीं, 60 के लिए लेफ्ट कुछ नहीं है, तो हमें लेफ्ट छोड़ दो। लेफ्ट मतलब कुछ नहीं लिखोगे आप, फिर आप रूट लिखोगे जो कि 60, और फिर उसका राइट जो कि था 90। ठीक है, राइट। इसके बाद आप वापस आए, 60 के रूट पे गए, 60 जिसके लिए लेफ्ट था उसके लिए आपको राइट उसका रूट भी लिखना था। जब आप 50 पे थे आप लेफ्ट पे आए थे ना 60 के लिए, अब आपको उसका रूट भी लिखना था, आपने 50 लिख दिया। उसके बाद आप 50 से राइट पे गए क्योंकि आपको रूट के बाद राइट लिखना होता है, फिर आपने 70 लिख दिया। Okay, if इसमें ये there's सब, no any, I'm extremely sorry. If हाँ there's जी, no any, okay, if there's no any left, then we will take root, and if there's any right, then we will take again root, and we will be going towards the right side, right? what you're saying is that if we don't have any left we will take the root, this is what Right. you're saying? अगर हमारे पास मान लो यहाँ पे लेफ्ट नहीं है, तो मतलब ये हमारा लेफ्ट के लिए वो खत्म ही हो गया, हम रूट ले लेंगे। एंड देन व्हाट यू आर सेइंग दैट इफ वी हैव राइट देन व्हाट वी नीड टू डू? We need to go back to the root, and then we will take it right, right? Yeah, so the pattern for us is left root right. If left is not present then we'll write a root, and Okay, if right. root, and if right is also present then after writing a root we will write right. Right, right. Understood. Yeah. Anyone हेलो else? हाँ जी, मैम, हाँ ये जी। 30 का अगर लेफ्ट चाइल्ड होता तो उधर से स्टार्ट होता ना मैम? हाँ जी, जस्ट सेकेंड, आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे अगर मान लो मैं लिख दूं 100। हाँ हाँ, तो हाँ 100 जी, से स्टार्ट होता ना? बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। अब आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो कि हम इसमें कर क्या रहे हैं, हम पूरा डेप्थ तक जा रहे हैं, जैसे मैं बोल रही थी कि नीचे तक जाएंगे, ओके। है ना? तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, हमें लेफ्ट मोस्ट पे जाएंगे हम पहले, और फिर ऐसे होगा, बिल्कुल। और मैम इसका हाइट कितना होगा, मतलब ये लेफ्ट लेफ्ट ये का हाइट हाइट? हम एक ट्री का
हम एक ट्री की हाइट उसके मैक्सिमम पाथ से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, 1 2 3, तो 3 आप मान लो एजेस से, वो डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन पे क्या लिखा है कि वो हाइट निकाल कैसे रहे हैं। एक मैक्सिमम पाथ पे जितने नोड्स आ रहे हैं वो उससे हाइट निकाल रहे हैं, या मैक्सिमम एजेस आ रही हैं उससे। बट या तो आप इसको बोल सकते हो विद रिस्पेक्ट टू नोड, इसमें 4 नोड है तो हाइट आप इसकी 4 भी बोल सकते हो। बट यूजुअली हम एजेस से करते हैं, तो 1 एज कितनी है, 1 2 और 3, तो 3 हाइट भी बोल सकते हो इसकी। तो वो डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में वो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट आपको एजेस के हिसाब से बोल रहे हैं या रूट के नोड्स के हिसाब से। बट हाँ, हमने मैक्सिमम पाथ देखना है कि मैक्सिमम कितना लंबा पाथ हमारे पास है, उससे हमारी हाइट निकल सकती है। तो एक तरह से मतलब ये जो हमारे पास पैटर्न्स है इसके हिसाब से हम ट्री पे ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब ट्री के हर नोड पे ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इन ऑर्डर। अब हम करेंगे पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर, ठीक है, पोस्ट ऑर्डर किसको बोलते हैं हम, ये आई थिंक हम ऊपर लिख लेते हैं, या चलो ठीक है इधर ही लिख लेते हैं। पोस्ट से आपको समझ आ रहा होगा, प्री मतलब हाँ। पहले, पोस्ट मतलब बाद में। बाद में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेफ्ट राइट देन रूट। हाँ यस, I thought you were asking something. So yeah, left, right and then root. So इसका क्या मतलब है कि पहले हम जाएंगे लेफ्ट पे, फिर जाएंगे राइट पे, फिर हम जाएंगे रूट पे। जो हम पहले रूट को पहले देते थे वो हम अब बाद में देंगे, प्री की जगह अब पोस्ट हो गया। ठीक है, तो अब इसका मेरे को कौन बताएगा। यस मैम। हम्म मैम इसका 30 होएगा, हम्म देन 80, देन 80, देन 40, देन 20, then 90, देन गुड 60, then 60, देन 90 70, 60 70 50 10 then 70, 50 and 10. then 10. एब्सोल्युटली। सो अभी हमने क्या करा, आई विल जस्ट एक्सप्लेन ताकि anybody having any doubt will also understand. So अभी हम क्या कह रहे हैं कि हमें, आप क्या करो, पहले लेफ्ट दे दो, फिर राइट दे दो और फिर रूट दे दो। ठीक है, तो हम लेफ्ट पे जाएंगे। हम पहले 10 पे गए, भाई हमें तो लेफ्ट चाहिए। हम 20 पे गए, भाई हमें तो लेफ्ट चाहिए। लेफ्ट पे गए, 30 पे गए, भाई हमें लेफ्ट चाहिए। लेफ्ट तो है ही नहीं, मतलब ठीक है यही हम लेंगे। अब लेफ्ट नहीं है, ठीक है भाई राइट पे जाओ। राइट भी नहीं है, ठीक है भाई अब रूट दे दो हमें। अब रूट दे दिया हमने, हमें 30 मिल गया। ठीक है, हम वापस गए 20 पे, भाई हमें लेफ्ट दे दो। लेफ्ट तो आप विजिट कर चुके हो, अब हमें राइट दे दो। 40 पे गए, 40 भाई हमें फिर से लेफ्ट दे दो। भाई 80 पे गए, 80 को बोला हमें लेफ्ट दे दो, लेफ्ट है ही नहीं। 80 को बोला हमें राइट दे दो, राइट है ही नहीं। फिर हमने 80 खुद ही दे दिया। लेफ्ट पे गए, राइट पे गए, फिर रूट खुद। ठीक है, लेफ्ट पे गए, राइट पे गए, फिर रूट खुद। तो हम 80 पे आए थे, 80 को बोला लेफ्ट दे दो, नहीं है। 80 को बोला राइट दे दो, नहीं है। 80 ने बोला, 80 को बोला चलो आप खुद ही अपने आप को दे दो, तो 80 ने अपने आप को दे दिया। उसके बाद अगर हमारा लेफ्ट हो गया, 40 के रिस्पेक्ट में हमारा लेफ्ट हो गया, 40 को बोला भाई राइट दे दो, राइट है ही नहीं। राइट नहीं है, लेफ्ट हो गया आपका, अपने आप को खुद दे दो। लेफ्ट राइट रूट, रूट खुद दे दो। तो 40 लिख दिया हमने। ऐसे ही 20 के लिए, 20 के लिए लेफ्ट हो चुका था, राइट हो गया, अब 20 अपने आप को खुद दे दे, 20 ने अपने आप को दे दिया। ऐसे ही 10 के लिए, 10 ने अपना लेफ्ट साइड तो दे दी, अब राइट को बोलते हैं भाई राइट दे दो। राइट में 50 है, 50 को बोला भाई अपना लेफ्ट दे दो। लेफ्ट में 60 है, 60 को बोला भाई अपना लेफ्ट दे दो, लेफ्ट है ही नहीं। 60 को बोला भाई अपना राइट दे दो, दे दिया उसने, 90 लिख दिया। 60 को बोला अच्छा लेफ्ट हो गया, लेफ्ट था ही नहीं आपका, 90 आपने दे दिया, अपना राइट चाहिए, अब अपने आप को खुद दे दो, रूट दे दो। तो भाई 60 ने अपने आप को दे दिया। ऐसे ही 50 ने, 50 को कहा 50 आपने अपना लेफ्ट तो दे दिया, 60 अपना राइट दो, राइट दिया उसने 70, 70 लिख दिया। लेफ्ट भी हो गया, राइट भी हो गया, अब अपने आप को खुद दे दो, 50 ने खुद को दे दिया। ऐसे ही 10 के लिए, अच्छा आपका लेफ्ट साइड भी हो गई थी, राइट साइड भी हो गई थी, अब अपने आप को खुद दे दो, लेफ्ट राइट रूट। तो 10 ने अपने आप को दे दिया। ठीक है, इसमें अभी किसी को डाउट है तो मुझे बताओ, मैं दोबारा बताती हूँ।
anyone having any doubt in any of the traversals, I would really like to repeat myself if anyone is having any doubt. Anyone? Okay, No, ma'am, you can forward. ठीक है. Please guys, if you have any doubt ना, then please tell, because सब लोग चले जाएंगे, सबकी जॉब्स लग जाएंगी, आपको लगेगा कि मैं पूछ सकती थी, मैंने पूछा नहीं, मैं पूछ सकता था, मैंने पूछा नहीं. Nobody will remember किसी ने क्या पूछा, किसी को कुछ याद नहीं रहेगा. अगर आपको कुछ भी डाउट है ना, डोंट shy away and ask. Hello, And I ma'am. will not now repeat myself. Okay. I Hello, repeat ma'am. myself in saying that कि किसी को डाउट है तो पूछो, समझाने को तो I will obviously repeat. So मैम फर्स्ट वाला एक बार रिपीट करो मैम. pre-order. हाँ मैम. ओके ओके. प्री ऑर्डर में हम क्या बोल रहे थे कि हमें रूट दे दो पहले, फिर लेफ्ट दे दो, फिर राइट दे दो. इतना समझ आया आपको कि पहले रूट, हाँ मैम. लेफ्ट एंड देन राइट. प्री मतलब पहले रूट. ठीक है. अब हमने क्या करा, हमने 10 लिखा क्योंकि हमें पहले रूट देना था, तो हमने 10 दे दिया. 10 से शुरू करा, पहले रूट देना था तो हमने 10 लिख दिया. फिर हम गए उसके लेफ्ट पे, क्योंकि हमारा पैटर्न क्या कहता है, रूट लेफ्ट राइट. रूट दे दिया, अब हम लेफ्ट पे गए 20 पे. अब हमने कहा इसके लिए भी हमें वही पैटर्न लगाना है, रूट लेफ्ट राइट. हम इस पे गए, हमने इसका खुद, ये खुद ही रूट था, हमने 20 लिख दिया. ठीक है. अब हम इसके लेफ्ट पे गए विच इज 30. 30 को बोला खुद ही ये पैटर्न लगाओ, रूट लेफ्ट राइट. रूट पे लगाया, ये खुद ही रूट है, इसने 30 लिख दिया. अब इसको बोला अपने लेफ्ट पे जाओ, इसका लेफ्ट कुछ है ही नहीं, नल है. इसका राइट भी कुछ नहीं है, नल है. ठीक है, तो हमारा खत्म हो गया ये. तो हम अब 20 पे वापस आए. 20 आपने अपने आप को तो दे दिया, आपने अपना लेफ्ट भी दे दिया, अब अपना राइट भी दो. ठीक है, राइट दिया, 40 लिखा. 40 पे आए, 40 को बोला आप भी अपने पे लगाओ रूट लेफ्ट राइट. 40 ने लगाया, 40 ने खुद को दिया, और फिर 40 से हम लेफ्ट पे गए क्योंकि रूट लेफ्ट राइट था. रूट हो गया, अब लेफ्ट आया. 80 पे गए, 80 पे फिर से लगाया ये रूट लेफ्ट राइट. लगाया, 80 को खुद ने 80 ने दिया क्योंकि रूट लेफ्ट राइट था, रूट खुद 80 है तो वो दे दिया. फिर हम उसके लेफ्ट पे गए, लेफ्ट कुछ नहीं था, नल है तो कुछ नहीं मिला. 80 से राइट पे गए, नल है, कुछ नहीं मिला. तो अब 10 का क्या हुआ, 10 ने खुद को दे चुका है, 10 10 का लेफ्ट साइड हो चुकी है. 10 खुद को दे चुका है, हम 10 लिख चुके हैं. 10 की लेफ्ट साइड भी हो चुकी है, 20 30 40 80. अब 10 की राइट साइड बची है. हमारा पैटर्न भी यही कहता था, रूट लेफ्ट राइट. ठीक है, तो अब हम राइट पे गए, राइट पे गए, 50 पे गए. 50 के लिए पैटर्न भी यही है, रूट लेफ्ट राइट. तो 50 के लिए रूट क्या है, 50 खुद ही रूट है. 50 ने रूट लिख दिया. 50 के लेफ्ट पे गए विच इज 60. 60 के लिए भी यही लगाना है, रूट लेफ्ट राइट. 60 के लिए रूट क्या है, 60 खुद है, 60 ने लिख दिया. 60 के लिए लेफ्ट पे गए, अब क्योंकि रूट लेफ्ट राइट था, लेफ्ट पे गए, लेफ्ट कुछ है ही नहीं तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, लेफ्ट इज नल. फिर हम राइट पे गए, राइट पे था 90, 90 लिख दिया. अब 50 के लिए क्या हुआ, 50 ने खुद को दे दिया है, 50 का लेफ्ट साइड भी हमने लिख दी, 60 और 90. अब 50 के राइट पे जाएंगे विच इज 70, तो हम 70 लिख दिया हमने. तो क्योंकि 50 के लिए भी यही था, रूट लेफ्ट राइट. लेफ्ट हो चुका था, रूट हमने पहले लिख दिया था, अब राइट की बारी थी, हमने 70 लिख दिया. आपको समझ आया? हाँ मैम. ओके. इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर आया आपको समझ? हाँ आया मैम. ओके गुड. एनीवन एल्स? आई थिंक okay, we will move forward. अब हम ये, अब आपको समझ आ रहा है कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम डेप्थ फर्स्ट सर्च कर रहे हैं, मतलब हम डेप्थ में जा रहे हैं. ठीक है. मान लो जैसे अगर हम प्री ऑर्डर की बात करें कि हम प्री ऑर्डर में डेप्थ में कैसे जा रहे हैं, अगर आप नोटिस करो तो हमने क्या लिखा है, 10 20 30, फिर 40, फिर 80, फिर 50, फिर 60, फिर 90, फिर 70. इन ऑर्डर में हम क्या लिख रहे हैं, पहले हम सीधा 30 पे चले गए, फिर 20, फिर 80 पे गए, फिर 40, फिर 10. मतलब हम नीचे जा रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं. ट्री की मतलब डेप्थ को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, कितना गहराई. डीप. हाँ जी, गहराई. गहराई. हाँ गहराई, एग्जैक्टली, गहराई, दिस इज द राइट वर्ड. हम गहराई में जा रहे हैं ट्री की. ठीक है, तो आपको ये समझ आ रहा है मैं डेप्थ मतलब क्या कहना चाह रही हूँ, कि जैसे पोस्ट ऑर्डर है, इसमें आप देखो हम बिल्कुल नीचे तक चले गए,
पहले हम 30 गए, फिर 40 गए, फिर सॉरी फिर 80 गए, फिर 40 गए, फिर 20, फिर 90, फिर 60, फिर 70, 50, फिर 10। ऐसे प्री ऑर्डर में हम पहले 10 गए, 20 गए, 30 गए, फिर 40, फिर 80। तो मतलब हम ऐसे हम ट्रैवल, हमारे पास एक क्लियर पैटर्न तो नहीं है कि हम बिल्कुल ऐसे ऐसे ही जा रहे हैं, बट हमारे पास ये जरूर है कि हम ऐसे नहीं जा रहे, हम 10, 20, 50 ऐसे एक लाइन में नहीं जा रहे, मतलब लेवल वाइज नहीं जा रहे, हम डेप्थ में जा रहे हैं। अब डेप्थ में भी हमारे पास 3 तरीके आ गए, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, अब वो आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा ऑर्डर लगाना है, किस ऑर्डर को लगा के आपको इजीली आंसर मिल सकता है। ठीक है, कि भाई अगर मान लो वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे, बट स्टिल आपको ये देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या डेप्थ में जाके सॉल्व हो रही है या आपको लेवल में जाने में फायदा है। ठीक है, जब हम डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात करते हैं, डीएफएस की बात करते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म ऐसे डीएफएस बोल लेते हैं, डीएफएस एल्गोरिथम। तो दो हमारे पास तरीके होते हैं, डीएफएस या बीएफएस। डीएफएस इज डेप्थ फर्स्ट सर्च और बीएफएस इज ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में हमारे पास आगे 3 कैटेगरीज हैं, विच इज पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। पोस्ट मतलब बाद में आएगा हमारा रूट नोड, पोस्ट बाद में, उससे याद रख लो आप पोस्ट से। प्री मतलब रूट पहले आएगा, इन मतलब रूट बीच में आएगा, लेफ्ट राइट का तो वही पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर है। ये आपको पहले मैंने 3 ट्रेवर्सल्स बता दिए फॉर डीएफएस विच इज डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब हम बात करते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च की, कि भाई अगर हमें ब्रेथ वाइज ट्रैवल करना हो। ब्रेथ वर्स मतलब कि जैसे हमने गहराई बात करा था, यहाँ पे हम शायद चौड़ाई बोल सकते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एम आई राइट, दिस इज द राइट वर्ड टू कॉल, मतलब चौड़ाई। चौड़ाई समझते हो आप लोग? हिंदी वर्ड शायद है नहीं चौड़ाई, बट हाँ मैम समझ चौड़ाई होता है मैम। ठीक है, तो मुझे लगा थोड़ा शायद पंजाबी वर्ड है, तो ठीक है, बट अगर हिंदी में है ये तो ठीक है। तो चौड़ाई में हम जा रहे हैं कि मतलब कितना कितना कैसे हम डेप्थ में ना जाकर, जैसे मान लो आपको अगर पढ़ना, अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, मान लो आप साइंस पढ़ रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपको बोलूं मैं डेप्थ फर्स्ट लगाओ, तो आप एक चैप्टर के बिल्कुल अंदर तक जाओगे, पूरा चैप्टर को पढ़ोगे, पूरा खत्म करोगे, फिर आप आओगे, वो आपका होगा डेप्थ फर्स्ट सर्च। जब आप ब्रेथ फर्स्ट सर्च के हिसाब से पढ़ोगे, तो आप हर चैप्टर को थोड़ा 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 पढ़ दोगे। तो वो उससे आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, डेप्थ फर्स्ट और ब्रेथ फर्स्ट। ऐसे ही हमारे पास डेप्थ फर्स्ट सर्च में हमने देख लिया ये 3 तरीके, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। अब हम देखते हैं कि हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम बोलते हैं लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। लेवल ऑर्डर मतलब हम लेवल वाइज ट्रेवल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे लिए ट्री बना ही हुआ है, तो हम वो ना एफर्ट लगा के हम सीधा देखते हैं लेवल ऑर्डर किसको बोल रहे हैं हम। लेवल ऑर्डर में हम क्या करेंगे कि हम लेवल वाइज ट्रेवल करेंगे। लेवल वाइज से मेरा मतलब है कि हम पहले यहाँ गए, यहाँ गए, फिर हमने फिर लेवल वाइज ट्रेवल करा। ठीक है, पहले 1 पे गए, 2 पे गए, फिर 3 पे गए, 4, 5, 6, 7। ये हमारा लेवल वाइज हो गया कि हर लेवल पे हम लेफ्ट साइड से शुरू होकर हम राइट पे एंड कर रहे हैं। अब आप मुझे बोल सकते हो कि मैम क्या हम राइट साइड से कर सकते हैं? कर सकते हो, दैट इज योर वर्जन ऑफ लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, बट यूजुअली जो हमारा कन्वेंशनल तरीका है, हम यूजुअली लेफ्ट से शुरू करते हैं अपना लेवल ऑर्डर। बट दैट इज नॉट रॉन्ग, कि ऐसा नहीं है कि आपका कुछ गलत होगा आंसर, बट देन यू हैव टू स्पेसिफाई कि मेरा जो लेफ्ट ऑर्डर है हम लेफ्ट राइट से कर रहे हैं, बट फॉर द सिंप्लिसिटी आप इसको लेके चलो कि हम लेफ्ट से कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसका लेवल ऑर्डर हमें लिखना हो तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, अब मुझे ये मैं यहाँ पे ना इन ऑर्डर पोस्टर लिखे हुए हैं। अब आई विल आस्क पीपल, ये समझ आया सबको? लेवल ऑर्डर तो आई थिंक इजी है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, It आपको will जो work भी according to the sequence, right?
या अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस, मतलब आपने रूट लिखा, फिर उसके चाइल्ड लिख दिए, फिर उनके चाइल्ड लिख दिए, मतलब हर लेवल पे जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो तो अब इन्होंने सिंप्लिसिटी के लिए 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 25 30 40 50 कुछ भी हो सकता है, दैट इज नॉट एन इशू। आपको बस जो भी लेवल में है, जैसे ये लेवल क्या है इसका, इसका लेवल 0, इसका लेवल 1, इसका लेवल 2, मतलब 0 मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम यूजुअली 0 इंडेक्सिंग से शुरू करते हैं, इसलिए हमने 0 लिखा है। अब इसको 1 2 3 भी दे सकते हो नाम, दैट इज अप टू यू। बट ये क्लियर हुआ कि लेवल ऑर्डर का मतलब क्या है, मतलब हम लेवल बाय लेवल ट्रैवल करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब आपको राइट टू लेफ्ट करना है वो भी हो सकता है, बट यूजुअली हम लेफ्ट टू राइट करते हैं। एंड if that is clear, then I will ask people some questions so that I am also sure that you guys are able to understand what I'm teaching. अगर किसी को डाउट है तो अभी आप पूछ लो, अभी तक जो भी हमने करा है, नॉट ओनली इन दिस, अभी तक जो करा है। ओके, सो स्तुति, can you please unmute yourself and tell me the in order traversal for this tree? स्तुति शर्मा, यस मैम। या आप मुझे इसका प्लीज इन ऑर्डर बता दो। पहले मैम 4 लिखेंगे। इन ऑर्डर का क्या मतलब है, लेफ्ट रूट राइट, ओके। आप कह रहे हो 4 लिखेंगे, ठीक है। देन मैम 5, ओके 2, 1, 6, 7, नहीं मैम 6 3 3 7 एंड मैम 4 2 5 होगा। सॉरी, यस मैम। ये आपने बाद में चेंज क्यों करा है? मैम थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गई थी ओके, इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है? मैम। पहले लेफ्ट लिखेंगे, देन रूट लिखेंगे, देन राइट लिखेंगे। ओके गुड। नाउ अभिषेक, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? इतना टाइम नहीं, देखो इतने में तो आपके पास आंसर आ जाते होंगे। Abhishek, please unmute yourself, otherwise we'll remove you from the meeting. Okay, forget it. Dipali, can you please unmute yourself? यस मैम। हाँ जी, आप can you please tell me the post order for this? पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। हाँ जी, ओके मैम, जस्ट गिव मी अ मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल दी 1, okay. Post order, just to remind you. ओके पोस्ट ऑर्डर। यहाँ से आप देख लो, लेफ्ट राइट रूट। ओके मैम। आपको समझ आया था जब मैंने बताया था? मैम आया तो था बट कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा ठीक है, आप ये देखो, लेफ्ट राइट रूट से मतलब क्या होगा अब आप यस मेरे को मैम। बताओ, यहाँ पे क्या कंफ्यूजन हो रहा है आपको?
सबसे पहले मैम लेफ्ट मीन्स 2 आएगा एंड देन 4 देन 5 4 का, सो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल 4 आएगा, ओके, गुड, 4 एंड देन 4 का राइट इज 5 ओके, and then its root is 2 and now we move forward at the top and from here now the left वाला हमारा ट्रैवर्स हो गया, तो रूट से राइट एंड देन राइट से अगेन यहाँ पे लेफ्ट 6 आएगा, हाँ जी, बिल्कुल, देन 7 गुड, देन 3 एंड देन 1। वेरी गुड। अब मुझे बताओ इसमें क्या दिक्कत थी? मैम थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो गया था, तो मैं इसमें कॉपी में बना के देख ली थी, तो अभी क्लियर हुआ। चलो बढ़िया है। तो मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ना? नो मैम। ठीक है, तो मतलब यही है, देखो ये आपको जो याद रखनी है चीज कि प्री इन पोस्ट है क्या। ठीक है, प्री का मतलब है भाई पहले रूट पहले दे दो, लेफ्ट राइट फिर वही ऑर्डर, इन रूट बीच में, लेफ्ट राइट साइड में, और ऐसे ही पोस्ट ऑर्डर लेफ्ट राइट रूट। तो आई थिंक everyone will be able to do it. Guys, you can unmute yourself, whosoever has yeah, Dipali, you can mute yourself. Yeah, okay. So let's move to level order। भी सबको आ गया? इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो मैम। Okay. एक बार I wanted to show you the code for these. Okay, ma'am, I have a doubt. Yeah, So yeah. in BFS, we have only one algorithm, right? Level order. यस, मतलब लेवल ऑर्डर में भी अब तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लो मैं बोलूँ आपको कि मुझे ऐसे, मुझे 1 2 3 4 5 की जगह ऐसे नहीं चाहिए, मुझे आप ऐसे प्रिंट कर दो। मतलब हर लेवल को आप अलग से अलग लाइन बाय लाइन कर दो, मतलब लाइन बाय लाइन, बट आप ट्रैवल तो उसी वे में कर रहे हो। तो या देयर इज ओनली वन मेथड, यू कैन प्रिंट इट इन डिफरेंट वेज, सो कोड वहाँ चेंज हो जाएगा, बट लेवल ऑर्डर कहते हम इसी को है। हाँ जी, तो ये भी हो जाएगा 1 then 3 then 2 then 7। हाँ, वो वही मैं बता रही थी आपको। अगर आपको वो राइट वे में करना है तो देन यू हैव टू स्पेसिफाई कि भाई मेरा लेवल ऑर्डर लेफ्ट टू राइट नहीं बल्कि राइट टू लेफ्ट है। बट यूजुअली फॉर कन्वेंशन हम लेफ्ट टू राइट ही चलते हैं। बट हाँ, आप चल सकते हो, आपको चलना हो, बट ऐसी कभी नौबत आती नहीं है। और चलना हो तो चल लो, कोई दिक्कत नहीं। कोड में आपको वहाँ चेंज करना पड़ेगा। जहाँ पे पहले आप लेफ्ट में जाते थे, पहले आप रूट से लेफ्ट में जा रहे हो ना, लेफ्ट की जगह आप राइट में जाओगे, और वही मतलब। Okay, ma'am. आप कुछ और भी पूछ रहे थे? somebody was asking something. No, ma'am, no. Okay. So I also wanted to show you the code कि actually code कैसे है, ताकि वो भी समझ आए। तो हम पहले बात करते हैं पोस्ट ऑर्डर की। पोस्ट ऑर्डर से पहले मैं प्री दिखाना चाह रही थी, पहले प्री देख लो आप। तो हमने पहले शुरू में क्या करा है, हमने एक नोड बनाई है। वैसे माय फर्स्ट लैंग्वेज इज जावा, बट आई थिंक आप लोगों ने तो जावा स्क्रिप्ट में करा है ना सब कुछ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. सो दिस इज कोड स्पेसिफिक टू जावास्क्रिप्ट, मतलब ये जावास्क्रिप्ट का ही है। तो होपफुली आपको ना दिक्कत आए, एंड आप लोगों को भी ऐसे ही करना होगा। माय फर्स्ट लैंग्वेज इज जावा, सो दैट इज दैट, बट स्टिल आई हैव ब्रॉट द कोड फॉर जावास्क्रिप्ट कि आप लोग एक बार देख लो। तो हमने मतलब नोड कंस्ट्रक्ट करी है जिसमें हमने की दिया है, की को एक वैल्यू दी है। ये इज दिस विजिबल और आई नीड टू जूम इट इन? मैम इज इट Ma'am, visible. ओके ओके, गुड। No, ma'am, it's visible. ओके, It's तो visible. मैं क्या यहाँ पे कह रही थी कि हमें यहाँ पे हमने एक नोड कंस्ट्रक्ट करी है। कैसे करनी है, उसके अंदर हमने 3 चीजें देनी है। एक हमारी की है, फिर देन वी हैव द रेफरेंस टू द लेफ्ट चाइल्ड, एंड देन वी हैव द रेफरेंस टू द राइट चाइल्ड। अभी शुरू में जो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे उसे हम नल दे देंगे, एंड देन इन द कोड वी कैन गिव द वैल्यूज। हम एक न्यू कीवर्ड से आप एक नोड कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। उसमें जो भी आप वैल्यू पास करोगे वो आपका की बन जाएगा। मतलब आप वैल्यू पास कर दोगे। जैसे अगर आपने 2 पास करा तो 2 वैल्यू चली गई उसके अंदर, ऐसे ही 3, ऐसे ही 4।
आपने मान लो रूट बनाया विद 1, फिर रूट के लेफ्ट को वैल्यू दे दी, नया रूट, नया नोड बनाया 2 की, फिर ऐसे ही रूट के राइट को आपने 3 दे दी, रूट के लेफ्ट डॉट लेफ्ट को, मतलब रूट से पहले लेफ्ट पे गए फिर उससे लेफ्ट पे गए 4 दे दी, ऐसे ही आप कर सकते थे। तो ये वो चीज करी हुई है, मतलब ये तो बिल्कुल कंस्ट्रक्शन है, ये आपको यूजुअली कोड में खुद ही इनपुट मिलेगा, आपको रूट नोड वो खुद ही दे देंगे, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ये कंस्ट्रक्ट करा है यहाँ पे कि आप समझ पाओ कि क्या है। तो वो है, बाकी जो हमारा मेन पार्ट है वो हमने तो कोड देखना है प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर का, कि हम कैसे ट्रैवल करते हैं। तो दैट इज दैट। अब जब हम प्री ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, प्री ऑर्डर से क्या मतलब होता है, लेट मी जस्ट चेंज टू पेन। या सो प्री ऑर्डर से हमारा मतलब होता है कि प्री मींस भाई रूट पहले दे दो, फिर लेफ्ट दे दो, फिर राइट दे दो, मतलब पहले रूट पे ट्रैवल करो, फिर लेफ्ट पे करो, फिर राइट पे करो। मैं यहाँ पे ना एग्जांपल ले लेती हूँ ताकि वो समझना आसान हो जाए। यहाँ पे लिखते हैं ताकि दोनों के लिए इजी हो। अ, मान लो ये 1 है हमारा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, हमने इसका प्री ऑर्डर लिखना है। एक बार इसका प्री मेरे को कोई बताएगा, इसका पहले रूट, ठीक है 1, हाँ जी, then 2, हम्म then 4, हम्म then 5, 3 6 3 6। ठीक है, तो हमने क्या करा, हम पहले रूट पे गए, 1 था, फिर उसके लेफ्ट पे गए 2 था, 2 का मतलब 2 के लिए ये पैटर्न चलाया हमने, फिर 2 के फिर से लेफ्ट पे गए विच इज 4, फिर लेफ्ट हो गया तो हम राइट पे गए विच इज 5 एंड सिमिलरली 3 एंड 6। अब हम देखते हैं कि हम कोड में कैसे ट्रैवल करेंगे इस पे। तो जब हम कह रहे हैं कि आपको रूट पे पहले जाना है, तो ये जो हमें इनपुट मिला है, आप लोगों को ये दिख रहा है ना मेरे को, क्योंकि मुझे काफी छोटा दिख रहा है, तो आप लोगों को तो और छोटा दिख रहा होगा। नो मैम, क्लियरली विजिबल है। अच्छा ठीक है, विजिबल है। थोड़ा सा ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पहले रूट पे जाना है। ये जो नोड आपको इनपुट मिला है ना यहाँ पे, दिस इज द रूट नोड या द टॉप मोस्ट नोड, मतलब यहाँ पे आपको 1 मिला हुआ है इसके अंदर, और 1 से आप लेफ्ट राइट पे जा सकते हो। ठीक है, मतलब आप नोड डॉट लेफ्ट करके, जब शुरू में जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें नोड में 1 मिला है, और नोड डॉट लेफ्ट करके आपको 2 मिलेगा, नोड डॉट राइट करके आपको 3 मिलेगा। ये समझ आया सबको कि मैं क्या कह रही हूँ? नहीं somebody is मैं asking, इंटरव्यू में ये कंस्ट्रक्ट करने को बोलते हैं? नहीं बोलते, इंटरव्यू में आपको सिर्फ फंक्शन लिखने को बोलेंगे बाय चांस। वैसे प्री ऑर्डर का कोई कोड तो नहीं पूछेगा, कोई क्वेश्चन मिलेगा आपको जिसमें प्री ऑर्डर का कोड यूज हो रहा होगा, बट अगर ऐसा होता भी है, मान लो आपको कोई बोलता है भाई प्री ऑर्डर का कोड लिख दो, तो उसमें आपको बस वो फंक्शन लिखना होगा कि आपको नोड मतलब रूट नोड मिल गई, और उससे आपको आपका पूरा ट्रैवल करना है। ठीक है, ये तो बस आपकी समझने के लिए मैंने लिखा था, ताकि पता लग जाए कि एक्चुअली कंस्ट्रक्ट कैसे कर रहे हैं हम। तो ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो हमें शुरू में नोड में 1 मिला है, और नोड डॉट लेफ्ट करके हम 2 ले सकते हैं, नोड डॉट राइट करके हम राइट पे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई इफ नोड इज इक्वल टू नल, नोड की अगर वैल्यू नल है तो रिटर्न हो जाओ। क्या नोड की वैल्यू नल है? इसका मुझे जवाब दो कोई। नो। नो मैम। नोड की अभी वैल्यू 1 है। ठीक है, अभी शुरू में जब हमने शुरू करा है, नोड की वैल्यू 1 है, हम इस पे हैं, हम इस वाली पे हैं। ठीक है, नोड की वैल्यू 1 है तो नल तो नहीं है, तो इसमें इफ में तो हम जाएंगे नहीं। अब हम क्या कह रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नोड डॉट की, मतलब ये प्रिंट के लिए होता है, ये आपको पता होगा ना, मतलब कंसोल डॉट लॉग करना हो या डॉक्यूमेंट डॉट राइट करें तो वो प्रिंट करता है। ये आप लोग समझते हो ना, डॉक्यूमेंट डॉट यस राइट? मैम। यस मैम। ठीक है, तो मतलब हम प्रिंट कर रहे हैं, हम प्रिंट कर रहे हैं 1 की वैल्यू, हमें यही प्रिंट करनी थी। हमारा प्री ऑर्डर क्या कहता है कि आप पहले रूट का प्रिंट कर दो,
हमें रूट ही प्रिंट करना था, हमने 1 प्रिंट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि हमारा पैटर्न क्या कहता है, रूट से भाई लेफ्ट पे चले जाओ। लेफ्ट पे कैसे जाओगे, या तो आप नोड डॉट लेफ्ट करके चले जाओगे। एक तो सिंपल तरीका है, आप लिख दोगे यहाँ पे भाई नोड डॉट लेफ्ट। ठीक है, नोड डॉट लेफ्ट, या तो आप ये लिख दो और इस पे चले जाओ। बट आपको आगे जाके भी तो यही पैटर्न लगाना है अपना, रूट लेफ्ट राइट। उस नोड पे भी रूट लेफ्ट राइट लगाना है ना। इस पे अग्री करते हैं सारे। हमें पहले 1 पे जाना है, फिर हमें उसके लेफ्ट पे जाना है, लेकिन उस नोड पे जाके भी हमें यही पैटर्न लगाना है। समझ रहे हो आप? हमें पहले रूट पे जाना है, फिर उसके लेफ्ट चाइल्ड पे गए, फिर उस पे भी हमें यही पैटर्न लगाना है, उस पे भी हमें रूट लेफ्ट राइट लगाना है। तो मतलब एक तरह से हम रिपीट कर रहे हैं अपना प्रोसेस, जो हमने रूट नोड पे करा वही हम उसके चाइल्ड पे भी करेंगे, वही हम उसके आगे वाले चाइल्ड पे भी करेंगे। तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा प्रोसेस रिपीट हो रहा है। जब हमारा प्रोसेस रिपीट होता है तो हम क्या करते हैं, हम रिकर्जन करते हैं, हम रिकर्जन को यूज करते हैं। रिकर्जन समझते हो आप लोग? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Yes, यस। ma'am. तो जब हमारा प्रोसेस रिपीट हो रहा होता है तो या तो हम लूप लगा देंगे, भाई वो प्रोसेस रिपीट करना है तो भाई इतनी बार रिपीट कर दो वो लूप लगा के। या जब हमारा वो सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है, हमें वो सेम काम आगे 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 भी करना है, तो हम रिकर्जन लगा देंगे, रिकर्सिव कोड लिख देंगे, और उसके लिए हमारी एक बेस कंडीशन हो जाएगी। ये पता है आपको, बेस कंडीशन और रिकर्जन, ये आप लोगों ने करा है अभी तक? Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. ठीक है, यस ठीक मैम। है, ठीक है, गुड। तो आप लोगों को तो फिर ऑलमोस्ट चीजें आती हैं अगर ये आता है। तो इसमें अब क्या करना है आपको, कि हमने ये देख लिया कि भाई हम इस पे तो चले गए, हमने रूट पे तो प्रिंट करा दिया, अब हमें लेफ्ट पे जाना है, और ये भी हमें पता है कि लेफ्ट पे भी हमें यही पैटर्न करना है। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से इसी फंक्शन को कॉल कर देंगे, मतलब प्रिंट प्री ऑर्डर को ही कॉल कर देंगे। बट इस बारी जो हमने पहले रूट नोड 1 भेजी थी, अब हम 2 भेज देंगे, क्योंकि हमें लेफ्ट पे जाना था और फिर 2 पे ये पैटर्न लगाना है। तो हम 1 की जगह पे अब हमारा रूट नोड हो जाएगी 2। 2 कैसे भेजेंगे, नोड डॉट लेफ्ट करके। नोड की वैल्यू अभी तक 1 थी, नोड डॉट लेफ्ट की वैल्यू 2 है, तो हम नोड डॉट लेफ्ट भेज देंगे। ठीक है, हम फिर से प्री ऑर्डर को कॉल कर देंगे और नोड डॉट लेफ्ट भेज देंगे। ये समझ आया आपको? किसी भी बच्चे को इसमें डाउट है? एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? आई थिंक मैं आगे बढ़ती हूँ, धीरे धीरे समझ आएगा। मान लो अभी भी किसी को डाउट हो तो आगे समझ आ जाएगा आपको। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास नोड में 2 आ गया, हम इस पे आ गए। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, एक सेकेंड। हम इस पे आ गए हैं, ठीक है। पहले हम इस पे थे, अब हम इस पे आ गए हैं, हमारे नोड में 2 आ गए। प्लीज जस्ट लेट मी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। या सो हमने क्या करा, पहले हम 1 पे थे, अब हम 2 पे आ गए हैं। 2 पे हम कैसे आए, हम नोड डॉट लेफ्ट करके 2 पे आए। अब हमने 2 के लिए ये फंक्शन पूरा हमारा चलेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि क्या हमारा नोड इक्वल टू नल है। नहीं, नोड हमारा नल तो नहीं है, नोड तो हमारा 2 है, तो हम रिटर्न नहीं करेंगे। अब हम क्या कह रहे हैं, भाई इसको प्रिंट कर दो, क्योंकि हमारा पैटर्न क्या कहता है, भाई रूट कर दो, लेफ्ट कर दो, राइट कर दो। तो अब 2 पे आए हैं हम, 2 पे यही पैटर्न चलेगा। 2 पे यही पैटर्न चलेगा, रूट लेफ्ट राइट। ठीक है, तो हमने 2 प्रिंट कर दिया, 2 यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इतना हमारा प्रिंट हो चुका है अभी तक, 1 प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, भाई ये तो आपने कर दिया, अब 2 के भी लेफ्ट पे जाओ। 2 के लेफ्ट पे जाना है हमें, हमारा पैटर्न कहता है रूट लेफ्ट राइट। रूट हो गया, अब लेफ्ट की बारी, लेफ्ट पे गए, पर हमें लेफ्ट पे फिर से यही पैटर्न लगाना है। इसके लिए हम फिर से रिकर्जन कॉल करेंगे। कैसे, हम प्रिंट प्री ऑर्डर को फिर से कॉल लगा देंगे, जिसमें अब हम रूट डॉट लेफ्ट भेजेंगे। रूट डॉट लेफ्ट क्या था, पहले रूट, अब हमारा 2 है, रूट डॉट लेफ्ट क्या होगा, 2 डॉट लेफ्ट इज 4, अब हम 4 भेज देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे 4 भेज देंगे। अब हम इस पे आ चुके हैं, ठीक है, अब हम इस पे आ चुके हैं। अब हमारे नोड में 4 आ रहा है, 4 आया, 4 क्या 4 इक्वल टू नल है, 4 इक्वल टू नल नहीं है, तो हम इसमें नहीं जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे, नोड डॉट की प्रिंट कर देंगे। हमने 4 प्रिंट कर दिया,
ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं भाई, आप रूट पे तो चले गए, आपने ये पैटर्न का रूट तो फॉलो हो गया आपका, आप लेफ्ट पे भी तो जाओ। आप लेफ्ट पे गए, हम हमने प्री ऑर्डर कॉल करा, नोड डॉट लेफ्ट, नोड डॉट लेफ्ट हमारा नल था, जिसका चाइल्ड कोई नहीं, लेफ्ट राइट नहीं, उसका कोई, हमारा कंस्ट्रक्टर ऊपर क्या कहता है, दिस डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नल करा हुआ है ना हमने, जिसके आगे कोई हमने लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड डिफाइन नहीं करा, उसका नल हुआ, तो हमने इसमें नल भेज दिया। अब 4 की जगह गया नल, 4 की जगह गया नल, यहाँ पे नोड में आया नल। अब क्या नोड इज इक्वल टू नल है? हाँ जी नल है, भाई रिटर्न कर जो, भाई आगे नहीं जाना, रिटर्न कर जो। अब हमने क्या करा था, हमने यहाँ पे 4 लास्ट टाइम हमने प्रिंट करा है, 4 के लेफ्ट पे गए हैं, प्री ऑर्डर लगाया है, और ये हमें रिटर्न करके मिल चुका है, मतलब ये वाली 4 के लिए 4 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, 4 की लेफ्ट कॉल, ये वाला, ये वाली लाइन है प्रिंट प्री ऑर्डर नोड डॉट लेफ्ट भी चल चुकी है, और हमें रिटर्न हो चुका है, क्योंकि नल था, नोड डॉट लेफ्ट नल था, उसने हमें रिटर्न कर दिया, तो यहाँ से हमें रिटर्न मिल चुका है, तो मतलब हमारा ये वाली लाइन भी चल चुकी है। अब हम आएंगे इस पे, प्रिंट प्री ऑर्डर नोड डॉट राइट पे। जब हम नोड डॉट राइट पे, नोड क्या था, 4 था, नोड डॉट राइट क्या है, 4 के राइट में क्या है, नल है, फिर से हमने नल को कॉल करा। अब ये जो पहले लेफ्ट के लिए गया था, अब ये राइट के लिए जाएगा नल, ठीक है, हमने नल को कॉल करा, यहाँ पे फिर नल आया, नोड डॉट इज इक्वल टू नल है, हाँ जी नल है, फिर से रिटर्न कर जो, भाई फिर से रिटर्न हो गया, ठीक है, फिर से रिटर्न हो गया। अब क्या हुआ था, अब क्या हुआ था, 2 के लिए आप याद करो, 2 के लिए क्या हुआ था, 2 ने अपने आप को प्रिंट करा था, नोट डॉट की 2 प्रिंट हुआ था, और उसके बाद हमने नोट डॉट लेफ्ट कॉल करा था, जिससे हम 4 पे गए थे, 4 का तो अब सारा काम हो गया, और ये वाली कॉल से हमारा 4 प्रिंट हो चुका है, मतलब हमारी 2 के लिए ये कॉल लग चुकी है। अब हम आएंगे इस पे, मैं एक बार ये रब करके दिखाती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। अब आप याद करो कि जब हमने नोट डॉट की 2 प्रिंट करा है, उसके बाद हम नोट डॉट लेफ्ट करके 4 पे गए हैं, हमने 4 के बाद हम फिर उसके लेफ्ट राइट पे नल नल पे गए हैं, और हमारी ये कॉलम लग चुकी है, ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आते हैं नोट डॉट राइट पे, 2 के राइट पे क्या है, क्योंकि हमारा पैटर्न कहता है रूट लेफ्ट राइट, रूट हमारा 2 प्रिंट हो चुका है, लेफ्ट पे हम गए, हमने 4 का सारा काम कर दिया आगे। अब हम आएंगे राइट पे, जब हम राइट पे आए, नोट डॉट राइट पे इसको 5 करने मिलेगा, आए, हाँ जी हाँ जी, 5 मिलेगा। हाँ जी 5 मिलेगा, बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ, 5 मिलेगा, और हम 5 यहाँ पे भेजेंगे, जो नोड की वैल्यू पहले हमारी, अब तो हमारी ये खत्म हो चुकी थी, 2 थी, अब यहाँ पे 5 होएगी, और यहाँ 5 आया, 5 ने चला, 5 का चला, ये सारा हम एक बारी के लिए रब कर देते हैं, बिकॉज दिस डजंट हैज एनी सिग्निफिकेंस, ठीक है। 5 पे आए, अब हमारे नोड में 5 है, तो क्या नोड इज इक्वल टू नल? नहीं जी, नोड तो 5 है, तो नहीं होगा, हमने नोड प्रिंट कर दी, नोड की वैल्यू प्रिंट कर दी, विथ नोड इज इक्वल टू 5, तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 5 प्रिंट हो गया। अब हम गए 5 के लेफ्ट में, क्योंकि हमारा पैटर्न कहता था रूट लेफ्ट राइट, रूट तो हम प्रिंट कर चुके हैं 5, अब हम लेफ्ट पे जाएंगे। अब हम लेफ्ट को सीधा प्रिंट इसलिए नहीं कर रहे, somebody कैन आस्क मी, भाई मैम आप बोल रहे हो रूट लेफ्ट राइट है, आप लेफ्ट प्रिंट क्यों नहीं कर रहे? इसलिए प्रिंट नहीं कर रहे क्योंकि हमें लेफ्ट पे भी यही पैटर्न लगाना है, क्या पता उस लेफ्ट के आगे भी लेफ्ट हो, तो पहले हमें उस पे जाना होगा ना, मतलब हमें वो भी कंसिडर करनी है ना चीजें, इसलिए हम वहां नहीं जा रहे, इसलिए हम यहाँ पे सीधा प्रिंट नहीं कर रहे, क्योंकि हमें ये पैटर्न आगे वाले नोड्स पे भी लगाना है, इसलिए हम रिकर्सिव कॉल लगा रहे हैं, ठीक है। तो नोड डॉट लेफ्ट पे गए आप, 5 का लेफ्ट क्या है, 5 का लेफ्ट है नल, क्योंकि कुछ नहीं पड़ा, ठीक है, नल पे गए, यहाँ पे नल आया, नोट डॉट इज इक्वल टू नल, हाँ जी नल है, रिटर्न कर जो, 5 अपने आप को यहाँ प्रिंट कर चुका था, 5 के लेफ्ट पे गए, हमें रिटर्न हो गया, ये स्टेटमेंट चल चुकी है। अब हम राइट पे आएंगे, नोट डॉट राइट क्या है, नोट डॉट फिर से नल है, भाई ये फिर से नल ही यहाँ पे गया, यहाँ पे नल आया, नोट इज इक्वल टू नल, हाँ जी नल है, भाई नल प्रिंट हो गया, तो काम खत्म। अब हमारा 5 भी प्रिंट हो चुका है, तो अब तक क्या हो चुका है, 1 से हम 2 पे गए, 2 से 1 पे आए, पहले हमने 1 प्रिंट करा, फिर उसके लेफ्ट पे गए 2 प्रिंट करा,
फिर हम उसके लेफ्ट पे गए 4 प्रिंट करा, 4 के लेफ्ट पे गए हमें रिटर्न हुआ नल, मतलब रिटर्न हो गया, हम वापस इस पे आ गए। फिर हम उसके राइट पे गए, नल था वो, तो हमें रिटर्न हो गया। फिर हम 2 का लेफ्ट हो चुका था, राइट पे गए 5 पे गए, 5 प्रिंट करा, 5 के लेफ्ट पे गए वो नल था, रिटर्न हो गया। 5 के राइट पे गए वो नल था, रिटर्न हो गया। अब हमारा 2 खुद भी हो चुका है जो कि रूट होना था, फिर उसका लेफ्ट भी हो चुका है, उसका राइट भी हो चुका है। 1 के लिए क्या हो चुका है, 1 खुद भी हो चुका है, 1 का लेफ्ट भी हो चुका है, अब 1 का राइट बचा है। ठीक है, 1 की खुद की कॉल लग चुकी है। 1 के लिए क्या सिचुएशन है, 1 के लिए क्या सिचुएशन है, 1 खुद प्रिंट हो चुका है। 1 की लेफ्ट कॉल से हम 2 पे गए, 2 से 4 पे गए, आगे आगे गए, 1 से लेफ्ट कॉल भी चल चुकी है। 1 से अब बची है राइट कॉल चलनी। ठीक है, तो हम 1 के राइट पे गए, नोट डॉट राइट विच इज इक्वल टू 3। तो हमने यहाँ पे अब मतलब नल की जगह 3 भेजा, तो यहाँ पे आया 3, नोड में यहाँ पे आया 3, नोड में 3 आया, भाई 3 था यहाँ पे, इसको रब कर दो। ठीक है, यहाँ पे आया नोड क्या नल के इक्वल है, नहीं नोड नल के इक्वल नहीं है, नोड तो 3 है, रिटर्न नहीं होगा, प्रिंट कर दो। नोड के इक्वल नोड्स की को प्रिंट कर दो, हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया 3 को। अब क्या कह रहे हैं भाई, हमने पैटर्न चलाना है, रूट लेफ्ट राइट, रूट तो आपने कर दिया, लेफ्ट पे भी जाओ, तो हम लेफ्ट पे गए, 3 के लेफ्ट क्या था, नल, नल नल नल, हम यहाँ पे नल पे गए, 3 की जगह हमने नल भेजा। वापस ठीक है, रिटर्न हो जाएंगे। यहाँ पे वापस रिटर्न हो गए, ये हमारी ये भी कॉल चल पड़ी, सॉरी। 3 खुद प्रिंट हो गया, 3 की लेफ्ट कॉल चल पड़ी। अब हम 3 के राइट पे आएंगे, 3 का राइट क्या है, 6 पे आए। ठीक है, यहाँ पे नल जो पहले पास हुआ था अब 6 होगा, यहाँ पे 6 था, 6 क्या नल के इक्वल है, नहीं 6 नल के इक्वल नहीं है। 6 को खुद प्रिंट कर दिया, नोट डॉट की को प्रिंट करना है, 6 को खुद प्रिंट कर दिया हमने। अब क्या करा, 6 के लेफ्ट पे गए, 6 के लेफ्ट पे गए, 6 का लेफ्ट क्या था, नल, नल पे गए, नल ने फिर से नल रिटर्न कर दिया, 6 प्रिंट हो चुका है, नल रिटर्न हो गया। अब 6 के राइट पे गए, राइट भी नल था, राइट पे कॉल गई, यहाँ पे हम फिर से नल पे गए, नल क्या नल की इक्वल है, हाँ जी है, रिटर्न कर जो, ये भी प्रिंट हो गया। तो हमारा सारा काम हो गया, रूट लेफ्ट राइट, हमारा ये पैटर्न भी प्रिंट हो गया, हमारा प्री ऑर्डर भी प्रिंट हो गया। ये समझ आया आप लोगों को। तो हमने करा क्या है, ये पूरी इतना कॉम्प्लेक्स आपको बताने के लिए हमने करा क्या है, आप पहले आपने रिकर्शन में क्या करना होता है, हमने लीप ऑफ फेथ रखना होता है कि भाई मैं ये काम रूट के लिए करूंगा और एज्यूम करूंगा कि मेरा ये बाकियों के लिए भी हो जाएगा, और बाकी बेस कंडीशन लिखनी होती है। तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई पहले रूट लिख दो, 1 लिख दो, फिर उसका लेफ्ट लिख दो, फिर उसका राइट लिख दो। ठीक है, और हम एज्यूम करते हैं ये चीज हमारी बाकियों के लिए भी काम कर जाएगी, बस इसकी बेस कंडीशन लिख दो कि भाई अगर नोड हमारा नल की इक्वल हो गया तो रिटर्न कर जाओ। जो इसको खोल के आपको समझाना है वो मैंने कर दिया। ठीक है, कोड तो देखो 3 लाइनों का है, चौथी लाइन आपकी बेस कंडीशन है, बट ये जो अंदर ये रिकर्जन समझना है वो इम्पोर्टेंट था। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो। एनीबडी हैविंग एनी डाउट, आई थिंक काफी लंबा था तो डाउट हो सकता है, सो यू कैन प्लीज आस्क। आई कैन रिपीट माई सेल्फ, प्लीज डोंट शाई अवे कि इतना लंबा कैसे रिपीट होगा, हमें डाउट है, हम पूछना नहीं चाह रहे, शर्म आ रही है या जो भी। तो एक काम कीजिए मैम, बता ही दीजिए एक बार फिर से। ओके, नो प्रॉब्लम। यस, तो मैं ये सारा एक बार वो कर देती हूँ, रब कर देती हूँ फिर। एक ओनली रिकैप दे दीजिए, बिकॉज समझ में आया है बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा होगा शुरू में। yes, because it's a, it's not a small code. या एब्सोल्युटली आई कैन अंडरस्टैंड। मैं एक सेकेंड में चार्जिंग पे भी लगा दूँ। Just give me a minute, guys.
या सो अभी आपको ये पता होगा कि रिकर्जन में हम क्या करते हैं कि हम एज्यूम करते हैं कि भाई हम ये काम अपने फर्स्ट नोड के लिए करेंगे और ये चीज हमारी बाकी नोड्स के लिए भी काम कर जाएगी। ये एज्यूम करके हम अपना कोड लिखते हैं। ये आप लोग समझते हो लीप ऑफ फेथ जो हम रिकर्जन में बोलते हैं? ये पता है या मैं रहने दूं, इस पे ना डिस्कस करें हम, ये पहले शेयर नहीं हुई हुई चीज। कैन समबडी जस्ट टेल लीप ऑफ फेथ और ऐसा कुछ डिस्कस करा है कि हम ये काम एक के लिए करते हैं और फिर आगे अपने आप हो जाएगा? बता दीजिए मैम। ओके सो मतलब ऐसा है कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमें करना क्या है। प्री ऑर्डर के अंदर हमें करना क्या है, हमें पहले रूट नोड लिखना है, फिर हमने लेफ्ट पे जाना है और लेफ्ट लिखना है, फिर हमें राइट पे जाना है। और ये काम हमें सब नोड्स के लिए करना है, ना कि सिर्फ टॉप मोस्ट रूट नोड के लिए। ठीक है, ये हमने सबके लिए करना है। तो एक बात तो आपको समझ आ रही है कि भाई जो चीज एक पे हो रही है वो सब पे होएगी, तो उसके लिए हमें रिकर्जन यूज करना पड़ेगा क्योंकि हम एक ही काम बार 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 कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम रिकर्जन यूज करेंगे। तो हम कैसे करेंगे रिकर्जन यूज? हमें पहले रूट नोड प्रिंट करना है। हमने रूट नोड प्रिंट कर दिया। ठीक है, हम आप ये बेस कंडीशन को भूल जाओ। आपको नोड में 1 मिला, नोड में यहाँ पे पहले हमें 1 मिल रहा है, सबसे पहले हमें 1 मिल रहा है। ठीक है, हम इस पे आए, नोड डॉट की पे आए, हमने प्रिंट कर दिया। हमने क्या प्रिंट करा? 1 प्रिंट कर दिया। अब हमें क्या करना है? हमें अपने पैटर्न के हिसाब से रूट तो हमने कर दिया, हमें अब लेफ्ट पे जाना है। तो या तो एक सिंपल तरीका हो सकता था, हम लिख देते नोड डॉट लेफ्ट, उसको प्रिंट कर दो, या तो हम यहाँ पे सिंपल 2 प्रिंट कर देते। पर हमें असली में करना क्या है? हमें ये जो पैटर्न है ये सब पे लगाना है। हालांकि आप यहाँ पे अगर मान लो आप इसके हिसाब से चलो कि भाई लेफ्ट राइट प्रिंट कर दो, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? 2 प्रिंट कर दोगे, फिर 3 प्रिंट कर दोगे, है ना? आपका रूट 1 है, लेफ्ट 2 है, राइट 3 है। बट हमें ये नहीं करना, हमें ये पैटर्न सारे एलिमेंट्स पे लगाना है। तो इसकी जगह हमारा क्या होना चाहिए? हमने 1 लिखा, हम इसके लेफ्ट पे गए विच इज 2, 2 पे ये पैटर्न लगाओ। 2 पे रूट क्या है? 2 खुद ही रूट है। नहीं, 2 पे रूट क्या है? 2 यहाँ पे है। पहले पहले इसके लिए हमें ये पैटर्न, जैसे हमने 1 के लिए ये पैटर्न लगाया था रूट लेफ्ट राइट, तो हमने पहले 1 लिख दिया था। अब हम जब रूट 2 पे ये पैटर्न लगाएंगे तो हमें फिर से रूट लेफ्ट राइट लिखना पड़ेगा। तो 2 के लिए रूट क्या बना? 2 के लिए खुद ही 2 रूट है, जैसे 1 के लिए 1 खुद ही रूट था। ठीक है, तो हम 4 पे गए। 4 पे कैसे गए? 2 ने अपना रूट लिख दिया, 2 से अब लेफ्ट पे भी तो जाना है हमें। रूट हो गया है, लेफ्ट पे गए, लेफ्ट पे गए तो 4 आया, 4 पे आ गए। अब 4 हमें सीधा 4 नहीं लिख देना, 4 पे भी ये पैटर्न लगेगा। 4 पे ये पैटर्न लगा, 4 खुद ही रूट है क्योंकि 1 जैसे रूट था, 2 जैसे रूट था, वैसे 4 भी खुद ही रूट है। ठीक है, 4 के लेफ्ट पे गए, 4 का लेफ्ट तो नल है, कुछ नहीं लिखना। 4 का राइट नल है, कुछ नहीं लिखना, वापस आ गए। ठीक है, अब 2 के लिए क्या हो चुका है? 2 के लिए हम 2 का खुद का 2 तो लिख चुके हैं, मतलब रूट लिख चुके हैं। 2 के लिए लेफ्ट भी हो चुका है विच इज 4। 2 का राइट बचा है अभी, तो हम 2 के राइट पे गए, राइट पे गए। अब राइट पे भी हमें यही पैटर्न लगाना है, पैटर्न लगाया। 5 पे रूट क्या है? रूट 5 खुद ही रूट है, 5 ने 5 लिख दिया। उसके लेफ्ट पे गए, भाई उस पे भी ये पैटर्न लगेगा, बट वो तो नल है, कुछ नहीं लिखना। राइट नल है, कुछ नहीं लिखना। तो अब 2 के लिए देखो, 2 को एज्यूम करो, 2 का रूट क्या है? 2 का रूट खुद ही ये है। 2 का लेफ्ट क्या है? 4। 2 का राइट क्या है? ये। 1 के लिए एज्यूम करो, मैं पेन चेंज करती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, 1, ये हाँ जी 2 हाँ का जी। रूट, 2 का लेफ्ट, 2 का राइट, ये 5 नहीं होगा? तो वही तो लिखा है, 2 का 2 खुद ही रूट है, लेफ्ट हाँ राइट, हाँ हाँ understood. वही लिखा है मैंने। ये 5 के लिए 2 के लिए बात करी थी मैं कि 2 का खुद का रूट 2 है, फिर लेफ्ट 4 है और राइट 5 है। राइट। अब हम बात करते हैं 1 के लिए। 1 के लिए 1 खुद ही रूट है। ठीक है, लेफ्ट क्या है? 2 हो गया, 2 हो गया ये पूरी साइड हो गई। लेकिन अब हमने 2 के लिए भी लिखना था, तो हमने 2 के लिए भी लिख दिया। अब ये काम हमने 2 के लिए भी करना है ना, इसलिए हमने ये 2 के लिए करा था। इसलिए हमने यहाँ पे 3 ना लिखकर 4 5 लिखा है।
असली में होना क्या चाहिए था, अगर हम सिर्फ ये 1 के लिए करते, रूट लेफ्ट राइट अगर हम सिर्फ 1 के लिए करते तो हमारा होना चाहिए था 1 2 3, ये प्रिंट करते। पर हमने क्या करा है 1 2 4 5, क्योंकि ये चीज हमारी, ये रूट लेफ्ट राइट ये सारे नोड्स पे लगना है। आप right. समझ रहे हो, ये Yes, सारे right. नोड्स पे लगना है, इसलिए हमें ये 4 5 भी लिखना पड़ा, क्योंकि हमें 2 पे भी ये रूट लेफ्ट राइट लगाना था। अगर बाय चांस ये 4 के भी चिल्ड्रन होते तो हम वो भी लिखते यहाँ पे, 5 से पहले हम वो भी लिखते। ठीक है, तो Yes, ma'am. ऐसे हम 1 के लिए रूट हो चुका है, लेफ्ट हो चुका है विच इज 2। अब 3 की बारी है, मतलब राइट की बारी है। ठीक है, हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब हम यहाँ पे 3 पे हम आ तो गए, हम 3 पे आ तो गए, पर 3 पे भी ये पैटर्न लगाना है। 3 पे पैटर्न लगाएंगे, 3 के लिए रूट क्या है, खुद ही 3 है, तो हमने Three, 3 three. प्रिंट कर दिया। 3 के लेफ्ट पे गए, वो तो नल है, कुछ भी नहीं Null है. आएगा यहाँ पे। 3 के राइट पे गए, 6 है, 6 Six. पे भी ये पैटर्न लगेगा, रूट लेफ्ट राइट। 6 के लिए रूट क्या है, 6 खुद ही रूट है, तो हमने 6 लिख दिया। 6 के लेफ्ट पे गए, नल है, कुछ नहीं आएगा। 6 के राइट पे गए, नल है, कुछ नहीं आएगा। तो आया क्या 1 2 4 5 3 6, मतलब पहले 1 पे गए, फिर 2 पे गए, फिर 2 से 4 पे गए, क्योंकि हमने लेफ्ट पे जाना था। लेफ्ट 4 पे खुद ही हमने ये रूट लेफ्ट राइट पैटर्न लगाया। अगर इसका लेफ्ट प्रेजेंट होता तो हम पहले वहां जाते और फिर वहां पे ये पैटर्न लगाते, बट इसका नहीं था तो हम रिटर्न कर गए, हमने 4 प्रिंट कर दिया। 4 तो हमने पहले प्रिंट कर दिया था क्योंकि रूट पहले आ रहा है। फिर उसके बाद हम 2 का, क्योंकि लेफ्ट हो चुका था, रूट खुद पहले हो चुका है, फिर हम राइट पे गए, हमने 5 प्रिंट करा, लेफ्ट राइट देखा, कुछ नहीं था, तो हम खत्म कर गए। ऐसे ही 1 के लिए 1 खुद हो चुका था, 1 का लेफ्ट हो चुका था, अब राइट की बारी थी, हम राइट पे गए, राइट ने खुद को प्रिंट करा क्योंकि खुद का वो रूट है, उसने खुद को देखा। फिर वो लेफ्ट पे गया, नल था, राइट पे गया, 6 था, 6 पे ये पैटर्न लगाया, रूट लेफ्ट राइट। 6 का रूट खुद ही 6 था, 6 लिख दिया हमने, लेफ्ट राइट, लेफ्ट कुछ नहीं था, राइट कुछ नहीं था, तो रिटर्न कर गए। ये समझ आया। अब आप कोड देखो, अब आप कोड देखो, कोड क्या कर रहा है। पहले हम 1 को प्रिंट कर रहे हैं, फिर हम क्या कह रहे हैं कि भाई 1 के लेफ्ट पे चले जाओ और फिर से यही सारी चीजें कर दो। कैसे करेंगे, इसी फंक्शन को 1 के लेफ्ट के साथ कॉल कर दो, Right. Ma'am, इसी but फंक्शन। हाँ जी, हाँ जी। according to according to your explanation, it हाँ जी, means that yeah, at the end of the story, each branch of the tree would be the route, right? या आई मीन आपको क्या करना है, आपको कैसे जाना है, रूट लेफ्ट राइट वो तो मैंने बता दिया, हाँ पर समझ गया। उस पे ट्रैवल हमें इस पैटर्न में करना है, और ये चीज हमें हर नोड पे करनी है। इसलिए हमें ये दोबारा से इसके लेफ्ट पे यही काम करना है, इसलिए हमने इसके नोड डॉट लेफ्ट को इसी फंक्शन पे कॉल कर दिया। राइट, ओके। समझ आया आपको? हाँ समझ। तो मैं आगे बढ़ूं या एक ना बार? ना ना, समझ में आ गया। ओके ओके ओके। सो एनीबडी हैविंग एनी डाउट? आगे फिर हम चले, ये हमने प्री ऑर्डर का तो देख लिया, जब प्री की बात हो रही है, जब रूट पहले आ रहा है। किसी बच्चे को एक सिंगल डाउट भी हो ना, प्लीज पूछो, बिकॉज दिस इज योर चांस। अदरवाइज एक बार समा निकल गया, फिर आप कहोगे मैं पूछ सकती थी, मैंने पूछा नहीं और मेरा रह गया। क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता आप क्या पूछ रहे हो क्या नहीं पूछ रहे, आपको फर्क पड़ेगा, आपका करियर बनेगा। ओके, आई थिंक नोबडी इज आस्किंग, सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। अब हम जब बात करते हैं इन ऑर्डर की, ठीक है, हम इसी ट्री को ले लेते हैं ताकि हमारा तो टाइम सेव हो। मुझे बीएसटी भी बताना था आज की क्लास में, तो या जस्ट फॉरगेट इट। अब हम बात करते हैं इन ऑर्डर की, ठीक है। इन ऑर्डर में क्या है, लेफ्ट, रूट रूट एंड राइट। एंड राइट। मतलब पहले हम लेफ्ट पे जाएंगे, फिर रूट पे जाएंगे, फिर राइट पे जाएंगे, और ये चीज हम सारे नोड्स के लिए करेंगे। मैं रिपीट करती हूँ, पहले हम लेफ्ट पे जाएंगे, फिर रूट पे जाएंगे, फिर राइट पे जाएंगे, एंड दिस थिंग विल बी डन ऑन each and every node, not only on the topmost root node, but will be done on each and every node. तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा कोड क्या कहता है, यहाँ नोड में हमें टॉप मोस्ट नोड या रूट नोड मिलेगा। शुरू में हमारे नोड में हमारी वैल्यू है 1, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, भाई पहले
आप प्रिंट मत करो, जैसे पहले तो हम प्रिंट कर देते थे ना, नोट डॉट की को प्रिंट कर दो। आप पहले लेफ्ट पे चले जाओ, लेफ्ट पे गए, 2 पे गए, 1 से हम 2 पे गए, भाई 2 पे तो इसका आ भी गए, लेफ्ट है, बट इसका भी इसके लेफ्ट भी है। लेफ्ट पे जाओ। हाँ जी, यस। क्योंकि हमें इसके भी लेफ्ट पे जाना है, तो हम 4 पे चले गए। अब मैं एक बार फिर से बताती हूँ, क्योंकि जल्दी करूंगी तो हो सकता है कुछ बच्चों को रह जाए, इसलिए थोड़ा सा मेरे साथ बियर करना, क्योंकि थोड़ा सा रेपिटेटिव लगेगा बट करना पड़ेगा हमें। पहले हमारा नोड 1 था, अब हम लेफ्ट पे गए, क्योंकि हमें लेफ्ट पे जाना था, उस पे हमें शुरू से करते हैं, एक सेकेंड। नोड हमारा 1 है, उस पे हमें ये पैटर्न लगाना है, लेफ्ट रूट राइट। नोड 1 था, उस पे लेफ्ट लगाया, नोड डॉट लेफ्ट करके हमने इसी फंक्शन को कॉल करा, क्योंकि ये काम हमने हर नोड पे करना है, इसलिए हम रिकर्जन यूज कर रहे हैं। हमने ये काम हर नोड पे करना है, इसलिए हम रिकर्जन यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने इस फंक्शन को दोबारा से कॉल लगाया। अब नोड की वैल्यू नोड डॉट लेफ्ट हो चुकी है, क्योंकि हमने ये पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, तो हमने 1 की जगह अब 1 डॉट लेफ्ट भेजा, विच इज 2। ठीक है, 2 भेज दिया, अब 2 आया यहाँ पे, 2 हमारा नल तो नहीं है, आगे बढ़ो। अब क्या कह रहे हैं भाई, 2 पे तो चले गए, पर इसके भी लेफ्ट पे जाओ, क्योंकि हमने ये पैटर्न फॉलो करना है, लेफ्ट रूट राइट। 2 के लेफ्ट पे गए, 2 का लेफ्ट क्या है, 4। ठीक है, 4 पे गए, भाई 4 पे, 4 का नल है, नहीं 4 नल नहीं है। 4 के भी लेफ्ट पे जाओ, क्यों जाओ लेफ्ट पे, क्योंकि हमारे पास ये पैटर्न फॉलो करना है हमें, लेफ्ट रूट राइट, जो हम पहले वहां फॉलो करते थे, रूट लेफ्ट राइट, यहाँ पे हमें करना है लेफ्ट रूट राइट, क्योंकि ये इन ऑर्डर है। ठीक है, तो हम 4 पे गए, 4 से लेफ्ट पे गए, 4 का लेफ्ट क्या है, नल। नल पास करा हमने, नल पास हुआ हमारा। अब हमारा देखा, कंपेयर हुआ, क्या हमारा नोड इक्वल टू नल है, हाँ जी नल है, रिटर्न कर जाओ। रिटर्न कर गए, तो अब हमारा 4 के लिए जो हमने 4 के लिए जो हमने लेफ्ट को कॉल लगाई थी, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब भाई 4 को प्रिंट कर दो। 4 के लिए जो लेफ्ट कॉल लगाई थी, उससे हमें रिटर्न हो चुके हैं, हम हमारी ये कॉल खत्म हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, नेक्स्ट लाइन पे आए, नोट डॉट लेफ्ट तो हमारा नल था, उसके लिए कॉल लगाई, नल रिटर्न हो गया। बट नोट डॉट की क्या है, नोड खुद क्या है, नोड खुद 4 है, 4 प्रिंट हुआ, 4 अपने आप को यहाँ प्रिंट कर देगा। 4 प्रिंट तो हो गया भाई, 4 के राइट में तो जाओ, क्योंकि हमारा पैटर्न कहता है लेफ्ट पे आप चले गए, लेफ्ट ने आपने खुद को प्रिंट कर दिया, रूट ने खुद को प्रिंट कर दिया, पर आप राइट में तो जाओ। राइट में जाने के लिए हम क्या करेंगे, नोट डॉट राइट, मतलब 4 डॉट राइट। 4 डॉट राइट क्या है, नल। फिर से हम नल पे गए, हमने नल पास करा, नल पास करा, नल ने हमें फिर से रिटर्न कर दिया, क्योंकि नोड नोड इक्वल टू नल रिटर्न हो गया, तो ये खत्म हो गई कॉल, ये कॉल भी लग गई। तो अब तक क्या हो चुका है, एक बार मैं इरेजर से ये रब करती हूँ। अब तक क्या हो चुका है यहाँ पे, 2 के लिए, 2 के लिए हमने लेफ्ट कॉल लगाई, लेफ्ट से हम 4 पे गए, 4 से हम लेफ्ट पे गए, नल रिटर्न हुआ, 4 ने खुद को प्रिंट करा, और 4 से राइट पे गए, वो भी नल हो गया, तो मतलब 4 का पूरा खत्म हो गया। 2 का पूरा लेफ्ट वाली कॉल लग गई, 2 की पूरी लेफ्ट वाली कॉल लग गई। अब हम यस क्या मैम। कह रहे हैं भाई, 2 को खुद प्रिंट कर दो, 2 ने लेफ्ट तो कर लिया, 2 के लिए पैटर्न लगाना है, 2 ने 4 की 4 पे गए थे, लेफ्ट तो उसका पूरा हो गया, पर 2 खुद भी तो प्रिंट करेगा, 2 का खुद का रूट भी प्रिंट करेगा, तो हमने 2 को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। जब हमने 2 को प्रिंट करा, अब हमने 2 तो प्रिंट कर दिया, लेट्स मूव टू द राइट साइड ऑफ 2, बिकॉज वी नीड टू फॉलो दिस पैटर्न विच इज लेफ्ट रूट राइट। व्हेन वी नीड टू फॉलो दिस, हमें राइट में भी जाना होगा, तो हम राइट पे गए, 2 डॉट राइट, 2 डॉट राइट क्या है, 5। हमने यहाँ पे 5 पास करा। देयर इज एन अटेंडेंस पोल गाइस, यू कैन गिव योर अटेंडेंस। यहाँ पे किसी को डाउट है तो प्लीज बता दो, एक थोड़ी ब्रेक सी मिल गई है। अच्छा, गाय पीपल आर सेइंग टू कंटिन्यू, ओके। सो
हम बात कर रहे थे कि 2 का हमने लेफ्ट तो चला लिया, 4 पे गए थे, नोड डॉट लेफ्ट करा था, नोड हमारा 2 था, लेफ्ट करा था, 4 पे गए, 4 से हमने लेफ्ट पे गए, नल था, रिटर्न हो गया, 4 खुद प्रिंट हो गया, 4 से हम उसके राइट पे गए, नल था, रिटर्न हो गया। तो मतलब 2 का लेफ्ट कॉल लग चुकी है। अब 2 ने खुद को प्रिंट कर दिया, ये पैटर्न फॉलो करना है। तो अब 2 उसके राइट पे जाएंगे हम। 2 का राइट क्या है? 5। हमने यहाँ नल में 5 पास कर दिया, हमने यहाँ नल में 5 पास कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 5 आया, क्या 5 नल के इक्वल है? नहीं, नल के इक्वल नहीं है। अब हम क्या करेंगे? 5 के लेफ्ट में जाएंगे, क्योंकि ये पैटर्न हमने 5 के लिए भी फॉलो करना है। 5 के लेफ्ट में गए, 5 का लेफ्ट क्या है? नल है, नल है, हमने यहाँ नल पास कर दिया। यहाँ पे नल आया, क्या नोड इक्वल टू नल? हाँ जी, नल है। हमने नोड डॉट लेफ्ट प्रिंट करा, सॉरी नोड डॉट लेफ्ट उस पे गए, सॉरी रिटर्न हो गया। यहाँ पे नोड डॉट नल नल है, रिटर्न हो गया। यहाँ से हम रिटर्न होके वापस आ गए इस पे। तो अब क्या हुआ? 2 का लेफ्ट कॉल भी लग चुकी है, जिससे हमारा 4 प्रिंट हो चुका है। और एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुई है, हम मैम 5 पे जा रहे 5 थे। प्रिंट नहीं हाँ करा हमने। नहीं, 5 से हम उसके लेफ्ट पे तो चले गए, बट सॉरी 5 के लेफ्ट पे चले गए, नल रिटर्न हो गया। और यहाँ पे अब हम 5 प्रिंट करेंगे, आई एम सो हाँ सॉरी। 5 प्रिंट, 5 को खुद प्रिंट करेंगे और फिर 5 के राइट में जाएंगे एंड फिर देखेंगे नल फिर से हमें रिटर्न कर देगा। एंड अब क्या होगा? हमारा 2 का 4 भी प्रिंट हो चुका है, 5 भी प्रिंट हो चुका है और 2 खुद भी चल चुका है। तो आप ये पैटर्न आपको समझ सकते हो आप। रूट यहाँ पे 2 है, उसका लेफ्ट भी हो चुका है, राइट भी हो चुका है। अब क्या बचता है? 1, क्योंकि लेफ्ट 1 के लिए उसका लेफ्ट तो हो चुका है, पर अब 1 ने खुद भी तो होना है, क्योंकि 1 इज अब रूट। हाँ जी, 1 इज अ रूट। आप इसको कोड में कैसे विजुअलाइज कर सकते हो? ऐसे कर सकते हो कि 1 जब हम पहली बार 1 के नोड को 1 लेकर आए थे, तो हम नोड के लेफ्ट में गए थे, जो कि 2 था। उसकी कॉल अब कंप्लीट हो चुकी है। 2 ने अपने लेफ्ट को कॉल करा, 4 ने अपने लेफ्ट को कॉल करा, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ हो गया। 2 का सब कुछ, 2 का लेफ्ट भी हो गया, राइट भी हो गया। अब हम फिर से 1 पे आए, 1 की लेफ्ट कॉल तो लग चुकी है, जिससे हमें 425 प्रिंट हो चुका है। बट अब 1 ने खुद भी तो प्रिंट होना है, 1 अब खुद प्रिंट होगा। ठीक है, 1 खुद प्रिंट हो गया। अब हम जाएंगे 1 के राइट में। 1 के राइट में क्या है? 1 के राइट में है 3। यहाँ पे अब हमारा 3 जाएगा। यहाँ पे नोड में आया 3, क्या नोड नल की इक्वल है? नहीं, नल की इक्वल नहीं है। अब आप जाओ 3 के लेफ्ट में, क्योंकि यही पैटर्न 3 के लिए भी लगना है। 3 के लेफ्ट में गए, क्या गए? 6 गए। ठीक है, 6 के नो लिए मैम, कॉल नल लगी। नल आएगा ना मैम। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, दिस इज राइट राइट। में प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी। या नल, नल। तो या हम नल पे गए, रिटर्न हो गया। तो 3 के लिए भी लेफ्ट कॉल लग चुकी है, लेफ्ट कॉल पूरी चल चुकी है। अब खुद 3 प्रिंट होगा यहाँ पे। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे 3 प्रिंट हुआ, हमने 3 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? 3 के राइट में जाएंगे, विच इज 6, विच इज 6। हम यहाँ पे 6 में गए, नोड के इक्वल 6 गए, नोड नल के इक्वल नहीं है, नहीं है। अब 6 के लेफ्ट में जाएंगे, 6 के लेफ्ट में क्या है? नल है। यहाँ पे नल हमने पास करा, फिर से रिटर्न हो गया, इसकी लेफ्ट कॉल भी लग गई 6 की। अब 6 ने खुद को प्रिंट कर दिया, भाई 6 को खुद को भी बिकॉज प्रिंट 6 इज करना है। रूट। 6 इज रूट, बिल्कुल। लेफ्ट राइट रूट, नाउ लेफ्ट वी नल हैव टू था, गो इन रूट 6 राइट। था। अब हम राइट पे गए, राइट खुद नल था, उस पे कॉल लगाई, नल ने रिटर्न हो जाएंगे। रिटर्न हो गया, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ और हमारा ये इन ऑर्डर प्रिंट हो गया यहाँ पे। तो एसेंशियली कोड में क्या हो रहा है? पहले जी आप लेफ्ट पे जाओ, आपका आप कहता क्या है इन ऑर्डर? क्या कहता है? लेफ्ट रूट राइट, ऐसे रूट ही रूट राइट, लिखना है यस। हमने। पहले लेफ्ट पे जाओ, प्रिंट कर दो रूट को, और फिर राइट पे जाओ। लेफ्ट पे जाओ, प्रिंट कर दो रूट को, राइट पे जाओ। ये चीज आपने सब नोड के लिए करनी है, तो रिकर्जन में डाल दी। बेस कंडीशन लिख दी, भाई अगर कोई नोड इक्वल टू नल हो गया तो रिटर्न कर जाओ, ताकि हमें लीफ पे पता लग जाए भाई यहाँ हमें रुकना है। ठीक है ना? यस मैम, बेस्ट केस इज इन नल बिकॉज हाँ जी, हाँ जी। बेस केस इज नल, क्योंकि हमें रुकना कहाँ पे है? बेस केस किस लिए होता है भाई? ये रिकर्जन आपको रोकनी किधर है? यस मैम। आपको खत्म कहाँ करना है? हमें खत्म करना है जब हम आखिरी लीफ नोड्स पे पहुंच गए, जब उसके नीचे कुछ लेफ्ट नहीं है तब रुक जाओ, अगर लेफ्ट है तो जाते रहो। ठीक है ना? तो ये है। अब आई वांट कि आप लोग प्री ऑर्डर, सॉरी पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर तो मैंने बता दिया, इन ऑर्डर मैंने बता दिया, पोस्ट ऑर्डर आप खुद ट्राई करना। मतलब समझाया तो हुआ है, कोड उसका, कोड में कुछ नहीं है। जैसे प्री में हम पहले
की को प्रिंट कर देते थे, फिर लेफ्ट जाते थे, राइट जाते थे। इसमें हमने पहले लेफ्ट जाना है, राइट जाना है और फिर प्रिंट करना है। लास्ट हेलो में मैम। प्रिंट करना है। हाँ जी। मैम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आती है, मतलब सिर्फ 1 2 3 के लिए कितनी आएगी? हाँ जी, तो आप कर क्या रहे हो, आप सारे नोड्स पे जा रहे हो ना, तो नंबर ऑफ नोड्स आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ n। अब सारे नोड्स पे जा रहे हो तो बिग O ऑफ n, रिकर्सिव स्टैक को तो हम लेंगे नहीं कंसिडरेशन में। मतलब यहाँ पे 6 आएगा, O ऑफ n मतलब O हाँ ऑफ 6। जी, हाँ big O of n, जितनी n is the number of your nodes and the time complexity is big O of n and the space complexity is big O of 1, क्योंकि आप कोई स्पेस नहीं ले रहे and will not be considering the recursive stack जो हम बार बार कॉल कर रहे हैं उसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम कोई explicit स्पेस नहीं ले रहे। तो या is it clear? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Clear. Yes, ma'am. It's clear. Ma'am, up as somebody is saying to give the code, yeah, I can give you this code. You guys want this code? Yes, ma'am. Yeah, You ma'am. can Sure, share. sure. ओके मैं एक्चुअली BST के भी बेसिक्स बताना चाह रही थी आप लोगों को, तो हम एक बार वो भी देख लेते हैं। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स ताकि हम वो भी कर लें। सो आप लोगों का काम है कि आपको ये रिवाइज करना है एक बार, रिवाइज करने हैं ये सारे, एंड उसके बाद ये पोस्ट ऑर्डर जो हमने करा है इसको आपने, जैसे मैं पूरा समझा के लिख रही थी, अरे अभी तो हमने लेवल ऑर्डर का भी कोड नहीं देखा है। शिवम, then how will we finish it in 2 hours? I mean, मैम 2 तो बज गए ऑलमोस्ट। yeah. मैम एक कल क्लास कर ले लेना। Shivam, are you there? Actually, I'll send the code to Shivam and he'll forward it to you. वो पेस्ट नहीं हो रहा इतना लंबा कोड उसमें। मैम चैट No, you can send in the chat. Actually, you can make a PDF file. That is okay. I'll then do it later, I think. I don't want to waste class time. Shivam, do we need to continue it today or can we do this tomorrow? I mean, level order traversal is also left and then BST is also left. Today it will be hectic, ma'am. Shivam, are you there? मैम लंच करने चले गए। And we also sitting without lunch. Even I am also sitting. You So just आप मुझे ये बताओ, I'll talk to him. I think sure, we can ma'am. wrap Tomorrow it you up. Okay, can be sure. continue with the same, from here. I just want a feedback कि आप लोगों को समझ आया? Feedback. यस मैम। Yes, ma'am. बहुत अच्छा से समझाया मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, Okay, ma'am. thank Yes, you. ma'am. That was Absolutely. really मैं amazing तो सोच lecture. रहा हूँ मैम पहले क्यों नहीं आया, पहले आता तो हम लोग स्टे करते BSA में। Already. Okay. और So nice, मतलब अब आप लोग प्लीज ये कर लेना कि आप लोग घर जाके प्लीज एक बार कोड देखना, आराम से समझना कि जो आज कराया है वो समझ आया है नहीं आया, ताकि we can also take some doubts if there are right, ma'am. any, and Ma'am, post मैम order. हम तो you घर पे ही हैं। कोड यस मैम घर पे जाके करेंगे। right, ma'am. You can share the code with the file. There's an option, in the on your here. You can share with the file here. Okay, just give me a Ma'am, you second. can share the doc file as well. You can share from there, and you just make an PDF file, and you can share it with the chat. Yeah, I'll just make a Google Sheets only. Just give me a minute. Okay, ma'am. Ma'am, I have a code or Thank you so much.